Everyone, it's matter of great pride and honor that Government Shakambar PG College, Sambar Lake has the privilege to organize one-day national workshop on intellectual property rights, IPR, and IP management for startups 2021-22. I heartily welcome all the dignitaries, staff members, participants, and our special resource person, Dr. Manoj Balan, NIPM officer. For today's event, it's our privilege that our principal and patron, Dr. Gyan Prakash Daima, Vice President IIC, promotes the IC culture wholeheartedly for the development of the college and our students. Now, just a brief introduction to IIC. Yes, we were talking about Institutions Innovation Council. So most of the colleges, like there is innovation cell, and then to systematically foster the culture of innovation amongst all higher education with the mandate to encourage the creative energy of our student population to work on new ideas and innovation and promote them to create startups and entrepreneurial ventures. So, a network of more than 950 IICs were established on 21st of November 2018. IICs is a faculty expert students council which takes on multiple activities to promote innovation and entrepreneurship around the year. Now, just to tell you about our college, today our college is the host for this particular activity. So at Government Shakambar PG College, IIC was started during calendar year 2020-21. For that session, our college scored 2 scores, and during 2021 and 22, for the first 2 quarters, that is Q1 and Q2, our college had 2 scores, and it had 2 star, and it was one of the most actively working colleges, so which had got 2 star among standalone institute category. For that, we have conducted 17 activities, and those activities are in 3 categories. And the first category is IIC calendar activity. The second activity is the self-driven activity, and the third is the day celebration activity. And today's activity is related to IIC calendar activity for quarter 3, that is Q3. So now it's my privilege that I invite Dr. Jaya Rai, President IIC and HOD Chemistry, to further the proceedings of National Workshop. And Dr. Jaya Rai always inspires and encourages students to take up with different activities at IIC. And she also inspires us with her great, huge smile. Welcome, Jaya ma'am. Welcome. Thank you, Sangeeta, for such a sweet introduction. Good evening, everyone.
I welcome you all on the behalf of Government Shakambar PG College, Sambhar Lake. As you all know, Sambhar Lake is the India's largest inland salt lake and is around 80 kilometers from Jaipur. Though our college is situated in the rural belt, but it has evolved into one of the leading government colleges in Rajasthan. It has achieved many milestones, and one being the only government college having Institutions Innovation Council. This is the first institute to set up this in Rajasthan. As you all know, IIC is an initiative by MHRD to encourage, inspire, and nurture young students by supporting them to work with new ideas and try to transform them into prototypes and to prepare institute for Atal ranking. So we have been organizing various activities to enlighten and encourage students, and today's workshop is an extension of this. And I'm happy to tell that we have more than 700 registrations today for this workshop. I, being the president of IIC, welcome our resource person for today, Dr. Manoj Balan, NEPAM officer and engineer of patents and design, Ministry of Commerce and Industry, Government of India. He is a MSc PhD in chemistry from University of Rajasthan, Jaipur, and he has delivered almost 80 lectures on IPR. So over to Dr. Manoj Balan. Yeah. इस होस्ट ने उनको होस्ट बना दिया है. मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है सर? यस सर. ओके सर. गुड आफ्टरनून एवरीवन. मैं डॉक्टर मनोज बालान, NEPAM ऑफिसर एंड एग्जामिनर ऑफ पेटेंट्स एंड डिजाइन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस दिल्ली, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, IPO दिल्ली. First of all, I would like to thank Principal Sir Dr. Gyan Prakash Daima ji, Coordinator Dr. Priyanka Sharma ji, Convener, Co-Convener, Co-Coordinator, and dear students. मेरी आवाज आ रही है सर सभी को? Yes sir, we can hear you. Yes sir. Okay, thank you. Dear students, last year September 2021 को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, दैट इज कॉल्ड NEPAM, नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस मिशन. इस मिशन के माध्यम से पूरे देश में ये टारगेट रखा गया कि लगभग 10 लाख बच्चों को अप टू 15 अगस्त उनको जागरूक किया जाए, उनको अवेयर किया जाए कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है, आपकी बौद्धिक संपदा क्या है. और इस प्रोग्राम के माध्यम से ये बताया जाना था कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है, उसको आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, कैसे क्रिएट कर सकते हो, कैसे सिक्योर कर सकते हो, कैसे रजिस्टर कर सकते हो. और ये प्रोग्राम हमारा काफी सक्सेसफुल रहा था. हमने 1 मिलियन स्टूडेंट्स का टारगेट रखा था, जिसमें हमने लगभग 12 लाख स्टूडेंट्स को अवेयर किया था इसी 15 अगस्त को, क्योंकि इस साल भारत सरकार ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, आजादी का अमृत महोत्सव. इसी अमृत महोत्सव के रिगार्डिंग इस प्रोग्राम को आयोजित किया गया था. अब इसी प्रोग्राम को हम दोबारा से कंटिन्यू कर रहे हैं.
राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता अभियान। मेरी स्लाइड शेयर हो रहा है सर सभी को? हाँ जी सर। चूंकि आज का हमारा टॉपिक है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में IPR भी बोलते हैं, और इसको हम हिंदी में बौद्धिक संपदा अधिकार के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की, तो व्हाट इज प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? जनरली हम प्रॉपर्टी को 2 पार्ट्स में डिफाइन करते हैं, दैट इज टेंजिबल एंड इंटेंजिबल। टेंजिबल, जिस प्रॉपर्टी को आप मेजर कर सकते हो, जिस प्रॉपर्टी को आप टच करके देख सकते हो, जिस प्रॉपर्टी को आप हाथ लगा के देख सकते हो, उस प्रॉपर्टी को हम टेंजिबल प्रॉपर्टी कहते हैं। वो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, वो आपकी भौतिक संपदा है। उसको भी हम जनरली 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मूवेबल एंड इमूवेबल। मूवेबल मींस जिस प्रॉपर्टी को आप एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव करके ले जा सकते हो। जैसे आपकी कार है, आपकी स्कूटी है, आपकी बाइक है, आपकी साइकिल है, वो आपकी मूवेबल फिजिकल प्रॉपर्टी है, वो आपकी मूवेबल टेंजिबल प्रॉपर्टी है। यानी कि वो आपकी भौतिक संपदा तो है ही है, बट साथ में कौन सी मूवेबल प्रॉपर्टी है। उसी में हम एक पढ़ते हैं इमूवेबल, यानी कि वो एक स्थान पे फिक्स है। जैसे आपकी बिल्डिंग है, आपका फ्लैट है, आपका घर है, आपकी जमीन है, आपके खेत है, वो आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जिसको हम हिंदी में अचल संपत्ति के नाम से भी जानते हैं। तो दोनों की दोनों जो संपदा है, दोनों की जो दोनों संपत्ति है, मूवेबल एंड इमूवेबल, वो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, वो आपकी टेंजिबल प्रॉपर्टी है। बट आज हम डिस्कस करेंगे आपकी इनटेंजिबल प्रॉपर्टी की। उस प्रॉपर्टी को आप मेजर नहीं कर सकते, जिस प्रॉपर्टी को आप टच करके नहीं देख सकते, जिस प्रॉपर्टी को आप छूकर नहीं देख सकते, उस प्रॉपर्टी को हम इनटेंजिबल कहते हैं। वो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहलाती है, जिसको हम हिंदी में बौद्धिक संपदा कहते हैं। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, बौद्धिक, यानी कि जब भी आप अपनी बुद्धि का यूज करके, अपने माइंड का उपयोग करके किसी प्रॉपर्टी को बनाते हो, उस प्रॉपर्टी को हम उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी को हम उसकी बौद्धिक संपदा कहते हैं। तो 2 तरह की प्रॉपर्टी होती है, आपकी एक भौतिक संपदा होती है और दूसरी बौद्धिक संपदा होती है। बट आज हम डिस्कस करेंगे आपकी बौद्धिक संपदा के बारे में। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को भी हम जनरली 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, इंडस्ट्रियल लेवल पे और कॉपीराइट्स पे। इंडस्ट्रियल लेवल मींस जिनका इंडस्ट्री लेवल पे कुछ प्रोडक्शन हो, या जो पब्लिक है वो चीज इंडस्ट्री लेवल पे काम आती है, जिनका एक बड़ा प्रोडक्शन रहता है। जैसे कि आपका पेटेंट्स है, डिजाइन है, SICLD है, ट्रेडमार्क्स है, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस है, वो आपकी इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है। और इसके अलावा आपका कॉपीराइट भी आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी में हम जनरली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में पेटेंट्स, डिजाइन, SICLD, ट्रेडमार्क्स एंड जियोग्राफिकल इंडिकेशंस एंड कॉपीराइट्स की बात करते हैं। What is intellectual property? Intellectual property है क्या? Is a property that arise from human intellect. It is a product of human creation. It is a product of mind. यानी कि जब भी कोई स्टूडेंट्स, कोई भी विद्यार्थी, कोई एनी पर्सन जब अपने माइंड से, अपने इंटेलेक्ट से, अपने विवेक से, अपनी एबिलिटी से, अपनी बुद्धि से किसी प्रॉपर्टी को डेवलप करता है, जनरेट करता है, उस प्रॉपर्टी को हम उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं। उस प्रॉपर्टी को हम उसकी बौद्धिक संपदा कहते हैं। यानी कि आप जब भी कोई अपना माइंड यूज करके किसी प्रॉपर्टी को बनाते हो, उस प्रॉपर्टी को हम उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या रहता है? आपके दिमाग में किसी भी तरह का जब भी कोई आइडिया आता है, कोई भी ऐसा कोई आइडिया आता है जिसपे आप कोई टेक्नोलॉजी डेवलप कर सको, बट उस आइडिया से आपको क्या करना है, कैसे डेवलप कैसे करना है, उस आइडिया को आपके ब्रेन में किसी भी तरह का आइडिया आता है, तो आप उस पे अपने रिसोर्स लगा के, जो भी आपका आपका जो रिसोर्स है एंड इस पे जो लेबर कॉस्ट क्या आ रही है, तो आप अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। जनरली सिंपल आपके दिमाग में किसी भी तरह का आइडिया है, तो उस आइडिया को हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं कहते हैं। बट जब आप अपने आइडिया को उसकी प्रोडक्टिविटी में कन्वर्ट करते हो, जब उसका कोई ना कोई रिजल्ट या कोई ना कोई उसका कुछ भी यील्ड आपको जब मिलता है, तब उस प्रॉपर्टी को हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के नाम से कहते हैं। और जब आप अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को अपने नाम से रजिस्टर करवा लेते हो, अपने नाम से इसको सिक्योर करवा लेते हो, तो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में कन्वर्ट हो जाती है। आपको उस कंडीशन में गवर्नमेंट से हक मिल जाता है कि आप उसको
किसी अदर पर्सन को उसको रोक सकते हो, उसको बनाने से, उसको यूज करने से, उसको बेचने से। यानी कि आपका आईपी उस कंडीशन में आईपीआर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपके अधिकार के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। उसको हम आईपीआर के नाम से जानते हैं। अब कोई भी स्टूडेंट्स, कोई भी पर्सन अपने माइंड से कितनी तरह की प्रॉपर्टी बना सकता है, कितनी तरह की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बना सकता है, कितनी तरह की बौद्धिक संपदा क्रिएट कर सकता है। जैसे वो पेटेंट के अंदर रजिस्टर करवा सकता है, किसी आइडिया को डिजाइन के अंदर रजिस्टर करवा सकता है, ट्रेडमार्क्स में रजिस्टर करवा सकता है, उसका जियोग्राफिकल इंडिकेशन में रजिस्टर करवा सकता है, कॉपीराइट करवा सकता है, या फिर SICLD सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट्स लेआउट डिजाइन के अंदर कन्वर्ट करवा सकता है। तो इतनी तरह की बेसिक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रहती है, जिसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इसका इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस क्या है? आप अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को किस तरह से इसको सिग्निफाई कर सकते हो? जिस तरह से जब भी आपके नाम से आपकी कोई कार, कोई भी स्कूटी, कोई भी बाइक या आपका घर आपके नाम से रजिस्टर्ड रहता है, तो कोई भी अदर पर्सन बिना आपकी परमिशन के उसको यूज नहीं कर सकता, बिना आपकी परमिशन के आपके घर के अंदर नहीं आ सकता, बिना आपकी परमिशन के कोई आपकी बाइक को लेके नहीं जा सकता। यानी कि उसके जो डॉक्यूमेंट्स है, लीगल एविडेंसेस है, वो सारे सारे आपके पास है। उनके एकमात्र जो ओनर है वो आप हैं। उसी तरह से जब आपके नाम से आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपने नाम से रजिस्टर करवा लेते हो, उस कंडीशन में भी आप अदर पर्सन को एक्सक्लूड कर सकते हो। यानी कि कोई भी अदर पर्सन उस आइडिया को कॉपी नहीं कर सकता, उसको बेच नहीं सकता। यानी कि आप उस कंडीशन में भी आप उसको एक्सक्लूड कर सकते हो, आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो फ्रॉम अदर्स, आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो, कमर्शियलाइज कर सकते हो, उसका एक बिजनेस ब्रांडिंग जनरेट कर सकते हो, उसमें अर्न कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो। अब यूटिलाइजेशन एंड कमर्शियलाइजेशन कैसे कर सकते हैं? जैसे आपने कोई आइडिया क्रिएट किया, उस आइडिया का आपको कोई पेटेंट मिला, तो आप उसको ओवन यूज में भी खुद भी आप उसका अपना बिजनेस कर सकते हो, या आप उसको असाइन कर सकते हो किसी थर्ड पार्टी को, उसको लाइसेंस दे सकते हो, या उसका फ्रेंचाइज कर सकते हो, या फिर उसका मर्चेंडाइज कर सकते हो। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने बिजनेस को किस तरह से रन करवाना चाहते हैं। अगर मान लीजिए आप एक स्टूडेंट है, एक कॉमन पर्सन है और एक आप बिजनेसमैन है, आपने अपने आपके दिमाग में किसी भी तरह का कोई आइडिया आता है, तो और वो आइडिया आपके नाम से अगर रजिस्टर्ड हो जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर, तो वो आपके एक कॉमन पर्सन के लिए, आपके लिए गर्व का विषय होता है, आपके लिए प्राइड का एक मोमेंट होता है, आपके एकेडमिक्स में हेल्प करता है। आप जॉब सीकर की बजाय आप जॉब गिवर बन सकते हैं। और वहीं अगर आप एक बिजनेसमैन है, अगर आपके नाम से कोई आईपी रजिस्टर्ड है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है, तो आप उसको आइडिया को कमर्शियलाइज कर सकते हो, अपने बिजनेस का एक ब्रांड वैल्यू जनरेट कर सकते हो, आप अपने कंपटीटर्स को दूर रख सकते हो अपने आइडिया से, यानी कि उसको सिक्योर करवा के आप उसमें अर्न कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर हम जो भी हम बात करें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की, चाहे वो पेटेंट हो, कॉपीराइट हो, ट्रेडमार्क हो, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस हो, अगर हम बात करें कि एक सिंगल प्रोडक्ट में कितने तरह के आईपी हो सकते हैं, डिफरेंट आईपीज इन ए सिंगल प्रोडक्ट। जैसे आपको स्क्रीन पे आपको एक लैपटॉप दिखाई दे रहा है, इस लैपटॉप पे एक पर्टिकुलर कंपनी का एक लोगो मेंशन है, एक सिंबल मेंशन है। वो सिंबल, वो लोगो कंपनी कहाँ रजिस्टर करवाती है? ट्रेडमार्क एक्ट में रजिस्टर करवाती है। ट्रेडमार्क कानून में उस लोगो को कंपनी रजिस्टर करवाती है। तो ट्रेडमार्क भी एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। जिस टेक्नोलॉजी पे ये लैपटॉप काम कर रहा है, हर लैपटॉप के काम करने की टेक्नोलॉजी डिफरेंट होती है। हर कंपनी का अपना एक टेक्नोलॉजी रहता है, अपना एक इंटरफेस रहता है। वो जो टेक्नोलॉजी है, वो कंपनी टेक्नोलॉजी को पेटेंट एक्ट में रजिस्टर करवाती है। इस लैपटॉप का एक यूनिक डिजाइन है, इसका एक यूनिक एस्थेटिक अपीयरेंस है। उस डिजाइन को कंपनी डिजाइन एक्ट में रजिस्टर करवाती है। इसको हम इंडस्ट्रियल डिजाइन के नाम से भी जानते हैं। और जब भी आप कोई भी नया प्रोडक्ट परचेज करते हो, मार्केट से लेते हो, तो उसके साथ, उस प्रोडक्ट के साथ आपको एक छोटी-सी बुकलेट मिलती है। उस बुकलेट के अंदर यूजर मैनुअल्स उसमें मेंशन रहता है, उसमें कंपनी का डाटाबेस, किस तरह से वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैसे फंक्शनिंग करेगा। जो रिटर्न मैनुअल्स है, वो सारा का सारा जो डाटाबेस है कंपनी का, वो कॉपीराइट एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड रहता है। और इस लैपटॉप के अंदर जो इंटीग्रेटेड चिप यूज़ की जाती है, उसका जो डिज़ाइन कैसे है उस इंटीग्रेटेड चिप का, किस तरह से उसको बनाया गया है, उसको टेक्निकली कैसे उसको मॉडिफाई किया गया है, उस डिजाइन को हम SICLD एक्ट में रजिस्टर करवाते हैं। तो एक सिंगल प्रोडक्ट में सारे के सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो सकते हैं। अगर उसपे कोई लोगो मेंशन है तो उसको हम ट्रेडमार्क एक्ट में रजिस्टर करवाते हैं। उसका एक कोई यूनिक डिजाइन है, उसको हम इंडस्ट्रियल डिजाइन में रजिस्टर करवाते हैं। जिस टेक्नोलॉजी पे वो प्रोडक्ट काम कर रहा है, उस टेक्नोलॉजी को हम पेटेंट एक्ट में रजिस्टर करवाते हैं। और जो कंपनी का डाटाबेस है, किस तरह से वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैसे फंक्शन करेगा, कैसे काम करेगा, कैसे वर्क करेगा, वो सारा का सारा जो रिटर्न मैनुअल्स है, यूजर मैनुअल
में रजिस्टर्ड रहता है पर्टिकुलर लैपटॉप इंटीग्रेटेड सर्किट्स लेआउट डिजाइन में ऑलमोस्ट सारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है पेटेंट्स की। सभी को स्लाइड की मेरा वॉइस भी क्लियर आ रहा होगा? अभी आ रही है सबको? ओके, थैंक यू। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज पेटेंट। पेटेंट्स क्या है? पेटेंट भी एक तरह का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। व्हाट इज पेटेंट? A patent is the statutory protection for an invention granted for a limited period of time to the patentee. Patentee means जिसको पेटेंट ग्रांट किया जाता है, जो एप्लीकेंट फाइल करता है उसको पेटेंट मिलता है, उसको हम पेटेंटी के नाम से जानते हैं। ऑफ द टाइम टू द पेटेंटी बाय द गवर्नमेंट इन एक्सचेंज ऑफ फुल डिस्क्लोजर ऑफ हिज इन्वेंशन। मान लीजिए आप कोई भी एक स्टूडेंट है, उसके दिमाग में किसी भी तरह का कोई टेक्नोलॉजी का आइडिया आया और उस आइडिया को पेटेंट एक्ट में रजिस्टर करवाना चाहता है, तो उसको सबसे पहले अपने को उसको क्या करना पड़ेगा? उसको डिस्क्लोजर करना पड़ेगा, उसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा रिटन फॉर्म में कि मेरे पास इस तरह का आइडिया है, इस तरह से मैं उसको क्लेम कर रहा हूँ। अगर वो आइडिया सही है, अगर वो अकॉर्डिंग टू एक्ट है, लॉ है, कानून के अकॉर्डिंग है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है? उसको पेटेंट एक्ट में उसका रजिस्ट्रेशन करवाती है। तो पेटेंट एक स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन है, आपका एक कानूनी प्रावधान है, जनरली इन्वेंशंस के लिए दिया जाता है फॉर ए लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, 20 ईयर्स के लिए मिलता है। मान लीजिए आपने आज फाइल किया, तो आज की डेट से अगर वो आपका पेटेंट ग्रांट हो जाता है, आपको अगर पेटेंट मिल जाता है उस पर्टिकुलर आइडिया के बेसिस पे, तो 20 ईयर्स तक आपकी उस पर्टिकुलर आइडिया पे आपकी एक मोनोपोलिस्टिक राइट रहता है, आपकी एक मोनोपोली रहती है। तो एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए पेटेंटी जो पेटेंट फाइल करता है उसको हम पेटेंटी के नाम से जानते हैं, इन एक्सचेंज ऑफ फुल डिस्क्लोजर ऑफ हिज इन्वेंशन। जब आप अपना डिस्क्लोजर पूरा इन्वेंशन फाइल करते हो। ए पेटेंट इज ए कंट्री स्पेसिफिक राइट। जिस तरह से हर एक कंट्री का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है, हर तरह अपना एक संविधान है, उसी तरह से पेटेंट भी एक अलग तरह का कानून है, संविधान है, एक्ट है, लॉ है। और पेटेंट भी एक एक्ट है, डिजाइन भी एक अपना एक एक्ट है, ट्रेडमार्क भी एक एक्ट है, कॉपीराइट भी अपना एक एक्ट है। तो सारे के सारे कंट्री स्पेसिफिक राइट है। एक होल कंट्री का एक अपना एक कानून होता है, ये स्टेट पे डिपेंड नहीं करता है, इसको भारत सरकार का एक कानून सबको मानना होता है। तो पेटेंट इज ए कंट्री स्पेसिफिक राइट। पेटेंट गिव्स मोनोपोलिस्टिक राइट्स टू इट्स ओनर टू एक्सक्लूड अदर from making, using, selling, offering for sale or importing the product or the process for producing the product without his consent. पेटेंट आपको एक मोनोपोलिस्टिक राइट देता है। जब भी कोई आपका आइडिया, कोई प्रोडक्ट आपका पेटेंट एक्ट में रजिस्टर्ड हो जाता है, तो पेटेंट आपको एक मोनोपोलिस्टिक राइट, मोनोपोलिस्टिक राइट्स यानी कि आपको एक एकाधिकार देता है कि कोई भी अदर पर्सन बिना आपकी परमिशन के उसको बना नहीं सकता, उसको यूज नहीं कर सकता, उसको बेच नहीं सकता, उसको ऑफर नहीं कर सकता। जैसे अभी आपने देखा कि कोविड का सिनेरियो चल रहा है। इंडिया में 2 तरह की वैक्सीन थी, कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड, और दोनों जो वैक्सीन के जो राइट थे वो अलग अलग कंपनी के पास थे। कोविशील्ड का राइट सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के पास था, कोवैक्सीन का राइट भारत बायोटेक के पास था। तो क्या इंडिया में सिर्फ 2 ही फार्मास्यूटिकल कंपनी है? ऐसा नहीं है, बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनी है। बट इन दोनों के जो कंपनी के जो साइंटिस्ट है, उन्होंने इस पर्टिकुलर वैक्सीन को जनरेट किया था, तो इनका राइट था कि ये हो सकता है उन्होंने उसका पेटेंट भी करवाया हो, तो उनका राइट था उन कंपनी का कि कोई भी अदर पर्सन या अदर कंपनी उसको बना ना सके, उसको बेच ना सके। तो पेटेंट भी आपको एक मोनोपोलिस्टिक राइट्स देता है, किसको? ओनर्स को, टू एक्सक्लूड अदर फ्रॉम मेकिंग, यूजिंग, सेलिंग, ऑफरिंग। ओनर हैज ए क्वालिफाइड राइट्स टू यूज द इन्वेंशन। अब इंडिया में हम क्या चीज को पेटेंट एक्ट में रजिस्टर करवा सकते हैं? व्हाट कैन बी रजिस्टर अंडर द पेटेंट एक्ट इन इंडिया? एनी प्रोडक्ट, एनी प्रोडक्ट मींस एनी, कोई भी तरह का प्रोडक्ट हो सकता है। वो मेडिसिनल प्रोडक्ट हो सकता है, वो इलेक्ट्रॉनिकल हो सकता है, वो मैकेनिकल हो सकता है। मेडिसिनल जैसे मान लीजिए आपने कोई नया मेडिकल फॉर्मूला बनाया, कोई नई आपने टैबलेट बनाई, कोई नई सिरप बनाई,
जो पब्लिक के काम आ रही है, पब्लिक को हेल्प कर रही है किसी भी पर्टिकुलर डिजीज के अंदर, या आपने कोई नई डिवाइस बना दी, कोई भी आपने नई मशीन बनाई, किसी भी तरह की आपने इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस बना दिया, किसी भी तरह का आपने कोई नया प्रोडक्ट बना दिया, तो एनी प्रोडक्ट कि जो भी जिस भी फील्ड में आप रिलेटेड हो, चाहे आप केमिस्ट्री से हो, मैकेनिकल से हो, कोई भी तरह का इंजीनियर हो, पॉलीमर के इंजीनियर हो, किसी भी तरह के हो, आप जब अपने फील्ड से रिलेटेड किसी प्रोडक्ट को बनाते हो, तो यानी कि एनी प्रोडक्ट और प्रोसेस, प्रोसेस मीन्स उस प्रोडक्ट को बनाने का प्रोसेस किस तरह से है, तो एनी प्रोडक्ट और प्रोसेस विच इज न्यू, अगर वो नया है, न्यू मीन्स नया है, नॉवल है, नॉन ऑब्वियस मीन्स कोई भी अदर पर्सन उसको ये ना कह सके इसको तो कोई भी बना सकता है आसानी से, यानी कि वो ऑब्वियस नहीं होना चाहिए, एंड कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन कैन बी पेटेंटेड। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन मीन्स उसका एक इंडस्ट्री लेवल पे प्रोडक्शन होना चाहिए, वो चीज पब्लिक के काम आनी चाहिए। तो जब भी आप कोई नया प्रोडक्ट बनाते हो, कोई नया प्रोसेस बनाते हो, अगर वो नया है, नॉन ऑब्वियस है और इंडस्ट्री लेवल पे उसका एक एप्लीकेशन है, तो आप उसको पेटेंट एक्ट में रजिस्टर करवा सकते हो। तो पेटेंट को देने के मेनली 3 क्राइटेरियाज रहते हैं। फर्स्ट कंडीशन वो न्यू होना चाहिए, नया होना चाहिए, नोवेल होना चाहिए। दूसरी कंडीशन रहती है नॉन ऑब्वियस, उसमें कुछ ना कुछ इन्वेंटिव होना चाहिए, यानी कि कोई भी ये ना कह सके इसको तो हम भी बना सकते हैं, इसमें आपने क्या कोई टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व की है। या थर्ड कंडीशन रहती है कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, यानी कि इंडस्ट्री लेवल पे उसका एक कोई ना कोई एप्लीकेशन होना चाहिए, यानी कि वो चीज पब्लिक के काम आनी चाहिए, यानी आप उसको बल्क में आप उसका प्रोडक्शन कर रहे हो। तो अगर ऐसा कुछ आपके पास प्रोडक्ट है या कोई भी तरह का प्रोसेस है, उसको बनाने का तरीका है, तो आप उसको पेटेंट एक्ट में रजिस्टर करवा सकते हो। A patent is not granted if the invention is already available in the public domain in any form, published literature, anywhere in the world or through common knowledge। यानी कि जब भी मान लीजिए आप किसी भी फाइल को पेटेंट एक्ट में रजिस्टर करवाने के लिए फाइल करते हो, और वो आपका जो आप जिसके लिए भी आप क्लेम कर रहे हो, जो भी आपका प्रोडक्ट है या प्रोसेस है, वो उस कंडीशन में ग्रांट नहीं किया जाएगा, उस कंडीशन में आपको पेटेंट नहीं दिया जाएगा, अगर उसका फॉर्मूला या उसको बनाने का मेथड या वो प्रोडक्ट पहले से ही पब्लिक डोमेन में, यानी कि पहले से पब्लिक को पता है। पब्लिक को पता है मीन्स वो किसी भी बुक में वो लिखा हो, या किसी भी सोशल मीडिया पे वो उसका मेथड बनाने का दिया गया हो, या किसी भी न्यूज़पेपर में अगर उसका मेथड पहले से पब्लिश हो रखा हो, किसी भी रिसर्च आर्टिकल में, किसी भी जर्नल में अगर वो पहले से पब्लिश हो रखा है, तो उस कंडीशन में आपको उसका राइट नहीं मिलता है। क्योंकि हम पेटेंट को देने के 3 क्राइटेरिया मैंने फर्स्ट में बताया था कि वो न्यू होना चाहिए, और जब वो चीज़ पहले से पब्लिक में नॉलेज में आ रखी है, तो जो न्यू का क्राइटेरिया वो खत्म हो जाता है, तो उस कंडीशन में पेटेंट का राइट नहीं मिलता है। तो पेटेंट इज नॉट ग्रांटेड इफ द इन्वेंशन इज ऑलरेडी अवेलेबल इन पब्लिक डोमेन। अब जैसे कि प्रोडक्ट मीन्स कोई भी आर्टिकल हो सकता है, कोई भी आपने डिवाइस बनाई, कोई एपरेटस बनाया, कोई मशीन बनाया, या कोई मशीन का कोई कंपोनेंट हो सकता है, या कोई आपने फार्मास्यूटिकल ड्रग बनाई, कोई सिरप बनाया, कोई भी प्रोडक्ट बनाया फार्मास्यूटिकल, या जो हम घर में डेली यूज में जैसे भी कोई भी डिटर्जेंट पाउडर का काम में लेते हैं, या कोई आप शैम्पू यूज करते हो, उसका कोई कंपोजिशन हो सकता है, या कोई भी तरह का प्रोसेस उसको बनाने का किस तरह से प्रोसेस क्या है, तो उसको भी आप पेटेंट एक्ट में रजिस्टर करवा सकते हो। कंडीशन क्या है, न्यू होना चाहिए, नॉन ऑब्वियस होना चाहिए, और इंडस्ट्री लेवल पे उसका कोई ना कोई एप्लीकेशन होना चाहिए। जैसे अगर हम जनरली पेटेंट के अंदर हम इनोवेशन की बात करते हैं, इन्वेंशन की बात करते हैं, टेक्निकल आइडिया की बात करते हैं। जैसे अगर हम ग्लोबली अगर हम बात करें, तो जैसे कि आप सभी ने थॉमस एल्वा एडिसन का नाम सुना है, उन्होंने फोनोग्राफ को डिस्कवर किया था। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का आपने नाम सुना है, उन्होंने टेलीफोन को इन्वेंट किया था। राइट ब्रदर्स जिन्होंने एरोप्लेन को इन्वेंट किया था। लुइस पास्चर जिन्होंने रेबीज वैक्सीनेशन को इन्वेंट किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जिन्होंने पेनिसिलिन को बनाया था। तो एक अगर हम ग्लोबली बात करें, तो ये फेमस साइंटिस्ट रहे हैं जिन्होंने इस तरह के इन्वेंशन किए थे। तो वो सारी जो टेक्नोलॉजी थी, जो इन्वेंशन से रिलेटेड, वो सारी अंडर द पेटेंट एक्ट में रजिस्टर्ड थी, जिस भी पर्टिकुलर कंट्री से जो बिलोंग करते थे। अगर हम इंडिया की बात करें, फेमस इंडियन इन्वेंशन की बात करें, तो आपने टाटा नैनो गाड़ी के बारे में देखा है, सुना है, तो वो भी एक इंडिया का एक फेमस इन्वेंशन रहा है। टाटा कंपनी का एक फेमस इन्वेंशन रहा है, जो कि एक पेटेंट एक्ट में रजिस्टर्ड है। हेपेटाइटिस वैक्सीन जो कि इंडिया का एक प्रोडक्ट है, वो भी एक पेटेंट एक्ट में रजिस्टर्ड है। जयपुर फूड के बारे में आपने देखा होगा, काफी अफोर्डेबल रहता है। तो ये भी एक फेमस इन्वेंशन था इंडिया का, और पेटेंट एक्ट में रजिस्टर्ड है। तो जब भी हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, टेक्निक की बात करते हैं, इनोवेशन की बात करते हैं, इन्वेंटिव आइडिया की बात करते हैं, तब हम पेटेंट की बात करते हैं। तो पेटेंट के अंदर हम जनरली इनोवेटिव आइडिया की बात करते हैं,
और वो आइडिया किस तरह का होना चाहिए, वो नया होना चाहिए, नॉन ऑब्वियस होना चाहिए और वो चीज पब्लिक के काम आनी चाहिए, यानी कि उसका इंडस्ट्री लेवल पे कोई न कोई एप्लीकेशन होना चाहिए। जैसे आपको स्लाइड में आपको एक बेबी शावर कैप आपको दिखाई दे रही है, यानी कि बच्चे को नहलाते टाइम इस तरह की कैप का यूज किया जाता है ताकि बच्चे की आईज को प्रोटेक्शन मिले, किससे, पानी से और शैम्पू से या साबुन से बच्चे की आंख में नहीं जाए। इस तरह की आपने कार्ड स्वाइपिंग मशीन आपने देखी होगी, इस तरह का डिस्प्ले आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रहा है। ड्रोन टेक्नोलॉजी आजकल खूब इंडिया के अंदर मैरिज सेरेमनी में यूज की जाती है। तो जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है या जो भी टेक्निकल आइडिया है, इनोवेटिव आइडिया है, उसको हम पेटेंट एक्ट में रजिस्टर करवा सकते हैं। जैसे कि आपको एक मिरर दिखाई दे रहा है, मिरर विद आयरन टेबल, उसको एज ए मिरर के रूप में भी काम में लिया जा सकता है, एज ए आयरन टेबल के रूप में भी काम में लिया जा सकता है। एक पेस्ट केजर मशीन है, पेस्ट निकालने के लिए। तो जैसे-जैसे पेस्ट खत्म हो जाता है तो हम उसको निकालने में ज़्यादा उसको प्रेस करना पड़ता है। तो किसी ने इस तरह की एक पेस्ट केजर मशीन को भी इन्वेंट कर दिया है। स्कूटर कम स्ट्रोलर, अम्ब्रेला विद हैंड बैग आपको एक स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। यानी कि जब बारिश हो रही है तो उसको एज़ ए अम्ब्रेला के रूप में, एज़ ए छतरी के रूप में यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ इसको एक जो लेडीज़ है उसको एक पर्स के रूप में भी एक यूज़ कर सकती है। तो एक हैंड बैग के रूप में भी यूज़ कर सकती है। तो ये भी एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। कहने का मतलब जो भी आप टेक्नोलॉजिकल आइडिया है वो सारा का सारा हम पेटेंट एक्ट में रजिस्टर करवा सकते हो। जैसे आप सभी ने जुगाड़ के बारे में इंडिया के अंदर हम सुनते रहते हैं कि वो फलाना जुगाड़ उन्होंने इन्वेंट किया था। तो जुगाड़ भी एक तरह का पेटेंट हो सकता है अगर उसमें कुछ इनोवेटिव आइडिया है, क्रिएटिविटी है, अगर वो नया है। तो हम कुछ बात करते हैं फेमस इंडियन इन्वेंटर की। जैसे कि आपको एक स्क्रीन पे एक 14 ईयर ओल्ड एक गर्ल दिखाई दे रही है। इनका नाम है रेमिया जोस। इन्होंने क्या किया था, एक बाइसिकल पावर्ड वॉशिंग मशीन को इन्वेंट किया था। Due to the lack of access to electricity and money, 14 years old रेमिया जोस from जैथोर इंडिया, ये केरला के एक जैथोर विलेज से बिलोंग करती है। इनके गांव में क्या था, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम थी काफी और पैसों की भी कमी थी। तो इन्होंने क्या किया, क्रिएटेड ए बाइसिकल पावर्ड वॉशिंग मशीन। इन्होंने एक बाइसिकल पावर्ड वॉशिंग मशीन को इन्वेंट किया था। दिस मशीन क्रिएटेड पावर थ्रू पैडलिंग, यानी कि जिस प्रकार से हम साइकिल के अंदर हम पैडलिंग करते हैं तो साइकिल आगे की तरफ मूव होती है, जो उसमें एक मैकेनिकल एनर्जी जनरेट होती है। उसी तरह से जब इसके अंदर पैडलिंग की जाती है तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। और फिर उसको, इस डिवाइस को उन्होंने एज ए वॉशिंग मशीन के रूप में भी काम में लिया था। तो काफी अच्छा इन्वेंशन था। जस्ट 14 ईयर्स ओल्ड इन्होंने इन्वेंट किया था इस तरह की टेक्नोलॉजी को। Sarang Sumesh is youngest innovator of India. He created his first robot at the age of 4. सारंग सुमेश एक इंडिया के यंगेस्ट इनोवेटर है जिन्होंने 4 साल की उम्र में भी एक रोबोट बना दिया था। गुरु सिमरन सिंह ऑफ गुरुग्राम built an assistive device called iScribe at the age of 16 when he was in class 12. गुरु सिमरन सिंह गुरुग्राम के थे और इन्होंने देखा कि इसके जो क्लास फेलो थे, जो ब्लाइंड स्टूडेंट थे, जिनको दिखाई नहीं देता था, जो पढ़ नहीं पाते थे, बुक्स को रीड नहीं कर पाते थे, तो इनके लिए इन्होंने एक ऐसी iScribe डिवाइस को बनाया, एक एसिटिव डिवाइस को बनाया, जिसमें क्या करते थे, उस डिवाइस से जब वो डिवाइस लगा के उस बच्चे किसी पर्टिकुलर बुक को रीड करते थे, तो वो उसको ऑडियो में कन्वर्ट करके सुनाता था, यानी कि उस रिटर्न जो बुक्स का जो डाटा था उसको ऑडियो में कन्वर्ट करके सुनाता था। तो इन्होंने इस तरह की जो एसिटिव डिवाइस कब बनाई थी, जब वो 12th क्लास में थे। Anant Dadar is a young innovator from Arunachal Pradesh who invented when he was in class 11 goggles for blind. अनंत दादर एक अरुणाचल प्रदेश के एक फेमस इनोवेटर रहे हैं और इन्होंने देखा कि जो ब्लाइंड पीपल है, जब वो रोड क्रॉस करते हैं तो काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सामने से कोई भी ऑब्जेक्ट आ रहा है, कोई बाइक आ रही है, कोई गाड़ी आ रही है, कोई कार आ रही है, तो उनको दिखाई नहीं देता, उनको पता नहीं चलता। तो इसके लिए इन्होंने ऐसे गोगल्स G4V नाम के गोगल्स बनाए, जिसमें इंफ्रारेड रेडिएशंस का यूज किया गया था और उसमें 1 या 2 मीटर की डिस्टेंस में अगर कोई भी अगर ऑब्जेक्ट आ रहा है तो उसको आइडेंटिफाई करके उनको पहले से ही इन्फॉर्म करता था उसको पर्टिकुलर पीपल को। तो ये काफी एक अच्छी डिवाइस थी। अगर हम बात करें यंगेस्ट पेटेंट होल्डर इन इंडिया के अंदर जो यंगेस्ट पेटेंट होल्डर है, एक है टेनित आदित्य। इन्होंने एक बनाना लीफ टेक्नोलॉजी को इन्वेंट किया था। द बनाना लीफ टेक्नोलॉजी विच ही इन्वेंटेड व्हेन ही वाज जस्ट 15 years old. The innovation extend the life of banana leaves for over a year and could bid farewell to single-use plastic and paper. आपने देखा होगा साउथ इंडिया में खूब सारे बनाना होते हैं और उनकी जो लीव्स है, बनाना की जो लीव्स है, वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद खराब होने लगती है, रोटेट हो जाती है। तो इसके लिए उन्होंने एक ऐसी टेक्नोलॉजी को इन्वेंट किया कि उस टेक्नोलॉजी से जो बनाना लीव्स है
उनको हम सिंगल यूज प्लास्टिक इन पेपर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। और इनके नाम लगभग 19 इन्वेंशन का इनके नाम रिकॉर्ड है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी है, और एक जस्ट 15 ईयर्स ओल्ड में। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी स्टूडेंट्स कभी भी किसी भी एज में टेक्नोलॉजी को डेवलप कर सकता है, इन्वेंट कर सकता है, उसको अपने नाम से उसको सिक्योर करवा सकता है। इसके लिए कोई फिक्स एज का बाउंडेशन नहीं है कि आप इतने साल के हो जाओगे, आपको टेक्नोलॉजी को डेवलप करना है, इन्वेंट करना है, या कोई पेटेंट आपको रजिस्टर करवाना है। इसमें कोई एज का कोई ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। आप किसी भी एज में कभी भी टेक्नोलॉजी को डेवलप कर सकते हो, उसको अपने नाम से रजिस्टर करवा सकते हो, अपने आईपी को सिक्योर कर सकते हो। तो ये पेटेंट के अंदर हम जनरली एक आइडिया की बात की, इनोवेटिव आइडिया की बात की, जब भी हम कोई टेक्नोलॉजी इन्वेंट करते हैं, टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं, जब भी हम कोई नया प्रोडक्ट बनाते हैं, जब भी कोई नया प्रोसेस बनाते हैं, अगर वो नया है, नॉन ऑब्वियस है एंड इंडस्ट्री लेवल पे उसका एक एप्लीकेशन है, तो आप उसको पेटेंट एक्ट में रजिस्टर करवा सकते हो। अब जनरली दिमाग में क्वेश्चन क्या आता है कि जब भी आप इस तरह कुछ आइडिया इनोवेट करते हो, कुछ जनरेट करते हो, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही रहता है कि हम उसको फाइल कैसे करें, पेटेंट को कैसे फाइलिंग किया जाए। तो फाइलिंग का प्रोसेस क्या है कि वांट टू फाइल पेटेंट एप्लीकेशन इन इंडिया, व्हाट टू डू, व्हाट फॉर्म शुड आई फिल, हाउ मच इज द फी, इनकी क्या-क्या फॉर्म्स रहेंगे। सबसे पहला फॉर्म रहता है फॉर्म फर्स्ट, उसमें डिटेल्स ऑफ एप्लीकेशंस एंड एप्लीकेंट की डिटेल्स रहती है, यानी कि जो एप्लीकेंट है, जो आवेदक है, उसकी डिटेल रहती है, उसमें कौन सा एप्लीकेंट, कितने लोग मिलकर उस फाइल को फाइल कर रहे हैं, या उसमें इन्वेंटर्स क्या है, उस जो भी आपने कोई भी नई डिवाइस बनाई है, कोई भी आपने नया प्रोडक्ट बनाया है, या कोई भी नया आपने प्रोसेस या टेक्नोलॉजी आपने इन्वेंट की है, तो उसका टाइटल क्या है, आप उसको क्या टाइटल देना चाहते हो, वो टाइटल, उसमें और कई सारे क्लोज रहते हैं, उसको आपको टिक करना होता है। आप किस तरह से फाइल कर रहे हो, आप एक कंपनी के रूप में फाइल कर रहे हो, या इंडिविजुअल फाइल कर रहे हो, या आपके पास कोई स्टार्टअप है, तो सारी की सारी जो बेसिक डिटेल्स है, आपका एड्रेस क्या है, आपका नाम क्या है, आपकी नेशनलिटी क्या है, वो सारा का सारा आपको फॉर्म 1 के अंदर फाइल करना होता है। इसकी कुछ फीस भी रहती है। एक होता है फॉर्म 2, इसमें डिटेल्स ऑफ इन्वेंशन रहती है। जो भी आपने, आपका जो आइडिया है, आपका जो इनोवेटिव आइडिया है, उसको आपने किस तरह से उसको राइट डाउन किया है, उसमें आपने क्या उसको टाइटल दिया है, उसमें बैकग्राउंड ऑफ इन्वेंशन क्या है, जो आपका लिटरेचर सर्वे आपने किस तरह से किया, आपकी जो ड्राइंग्स क्या है, और आपने किस तरह से आप उसको क्लेम कर रहे हो। क्लेम इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर इन्वेंशन, यानी कि क्लेम्स के बेसिस पे ही आपको प्रोटेक्शन मिलता है कि आप क्लेम किसके लिए कर रहे हो। आप क्लेम प्रोडक्ट के लिए कर रहे हो, या प्रोडक्ट के लिए करे तो किस तरह का वो प्रोडक्ट है, कोई मेडिसिनल प्रोडक्ट है, कोई मैकेनिकल है, इलेक्ट्रॉनिकल है, आपको उसको उसमें डिस्क्राइब करना पड़ेगा क्लेम्स के रूप के अंदर। आपको एक एब्स्ट्रैक्ट भी फाइल करना होता है, और जो भी आपका टेक्निकल जो डाटा है, उसको आपको ड्राइंग फॉर्म के अंदर भी फाइल करना होता है। तो फॉर्म 2 के अंदर आपको पूरा जो इन्वेंशन है, जो आपकी फाइल है इनोवेशन की, उसको आपको फॉर्म 2 के साथ बंद करके फाइल करना होता है। एक रहता है फॉर्म 3, डिटेल्स ऑफ फॉरेन फाइलिंग ऑफ सिमिलर इन्वेंशन। अगर आपने सेम इन्वेंशन को किसी अदर कंट्री में भी फाइल किया है पेटेंट लेने के लिए, मान लीजिए आपने इंडिया में भी फाइल कर दिया और जापान में भी आपने फाइल कर दिया, तो आपको बताना पड़ेगा कि हाँ, हमने जापान में भी फॉरेन फाइलिंग एप्लीकेशंस रहती है। एक होता है फॉर्म 5, डिक्लेरेशन एज टू इन्वेंटरशिप। इसके अंदर मान लीजिए अगर एप्लीकेंट और इन्वेंटर डिफरेंट है, एप्लीकेंट आप किसी और के नाम से फाइल कर रहे हो, बट उसके अंदर इन्वेंटर दूसरे हैं, तो आपको फॉर्म 5 के माध्यम से आपको बताना पड़ेगा। एक कहता है फॉर्म 18, रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन shall be filed within 48 months from the earliest priority date. Request for examination, जब भी आप कुछ भी फाइल करते हो, तो उसके बाद में आपकी एप्लीकेशन का तब तक एग्जामिनेशन नहीं होगा, तब तक आपका उसकी कोई रिपोर्ट आपको तब तक नहीं मिलेगी, जब तक आप फॉर्म 18 फाइल नहीं करोगे। तो इसको हम आरक्यू के नाम से भी जानते हैं। तो फॉर्म 18 रहता है रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। जब आप फॉर्म 18 फाइल करते हो, तो आपको ये विद इन द 48 मंथ, यानी कि 4, आज जैसे मान लीजिए आपने पेटेंट के लिए फाइल किया, तो आपके पास 4 साल का टाइम है, 48 मंथ्स का टाइम है, 4 ईयर का टाइम है कि आप उसको आरक्यू फॉर्म फाइल कर सको, कि आप अपनी एप्लीकेशन का एग्जामिनेशन करवाना चाहते हो। अदरवाइज वो आपकी एप्लीकेशन ऐसे ही रहेगी, उसका एग्जामिनेशन नहीं होगा। तो आपको इसके लिए, आप चाहते हो उसका एग्जामिनेशन हो, उसकी एक रिपोर्ट मिले, आपका पेटेंट ग्रांट हो, तो इसके लिए आपको फॉर्म 18 भी फाइल करना होता है। फॉर्म 28, अगर आप मान लीजिए आपके पास कोई स्टार्टअप है, या आपकी आपकी जो कंपनी है वो एमएसएमई के अंदर रजिस्टर्ड है। एमएसएमई मीन्स माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, या कोई कोई अलग तरह का इंस्टीट्यूट आपके पास है, तो उसके लिए आपको एक फॉर्म 28 मेंशन करना होता है कि हाँ, मेरे पास इस तरह का कंपनी, इस तरह का मेरे पास स्टार्टअप है, तो आपको फॉर्म 28 के माध्यम से आपको बताना होता है। तो ये बेसिक से फॉर्म रहते हैं, 4-5 फॉर्म हैं जो वेबसाइट पे दिए गए हैं, आप उसको वहां से डाउनलोड करके आइदर ऑफलाइन और ऑनलाइन आप उसको फाइल कर सकते हैं। फीस क्या रहती है?
ई फाइलिंग और ई फाइलिंग की बात कर रहे हैं हम। जैसे फॉर्म 1 की बात की, फॉर्म 1 में आपको पूरी बेसिक डिटेल्स देनी है, आपको एप्लीकेंट की, इन्वेंटरी की, आपके इन्वेंशन की, आप किस तरह के एप्लीकेंट है, आप नेचुरल पर्सन है। नेचुरल पर्सन मीन्स आप एक स्टूडेंट है, आप एक फैकल्टी है, या आप एक स्टार्टअप है। अभी हम स्टार्टअप की बात करेंगे, स्टार्टअप क्या होता है नेक्स्ट स्लाइड में। या फिर आप एक स्मॉल एंटिटी है। स्मॉल एंटिटी मीन्स आपकी कंपनी एमएसएमई के अंदर रजिस्टर्ड है, यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम जो एंटरप्राइजेज है, उसमें अलग अलग क्राइटेरिया होता है कि आपकी कंपनी का इतना टर्नओवर होगा तो आपको माइक्रो का एंटरप्राइज मिलेगा, या कुछ ज्यादा होगा तो उसके लिए स्मॉल या मीडियम का किस तरह का आपका है। अगर आपका एमएसएमई के अंदर रजिस्टर्ड है, स्मॉल एंटिटी है, या फिर आप एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट के नाम से फाइल कर रहे हो, तो कई सारी कंडीशन है। अगर आप मान लीजिए एक स्टूडेंट है, फैकल्टी है, नेचुरल पर्सन है, इंडिविजुअल है, या आप एक स्टार्टअप है, या आपकी कंपनी एमएसएमई में रजिस्टर्ड है, स्मॉल एंटिटी है, या किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट के नाम से फाइल कर रहे हो। एजुकेशन इंस्टीट्यूट मान लीजिए आपका कॉलेज है, आपकी यूनिवर्सिटी है, जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हो, जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हो, वो आपका एजुकेशन इंस्टीट्यूट है। अगर ये कंडीशन आप फॉलो करते हो तो आपको टोटल फीस फाइल करनी होती है 5600 अप टू 30 पेजेस के लिए। आपका इन्वेंशन अगर विद इन द 30 पेज है और उसमें 10 क्लेम्स है तो ये आपको लगभग 5600 रुपए फाइल करने होते हैं। फॉर्म फर्स्ट के लिए आपको 1600 रुपए, और फॉर्म 18 फाइल जैसे कि मैं बताया था कि आरक्यू फॉर्म होता है, रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन फॉर्म होता है, उसकी 4000 फीस होती है। इसी फॉर्म के फाइल करने के बाद आपकी एप्लीकेशन का एग्जामिनेशन किया जाता है, तो इसमें आपको 5600 फाइल करने होते हैं। अगर सेम इन्वेंशन, सेम ये टेक्नोलॉजिकल आइडिया अगर कोई बड़ी कंपनी फाइल करती है, इन सारी जो कंडीशन मैंने बताई कि आप एक नेचुरल पर्सन है, स्टूडेंट है, फैकल्टी है, स्टार्टअप है, स्मॉल एंटिटी है, या एजुकेशन इंस्टीट्यूट भी है, इन सब के अलावा जो बड़ी बड़ी कंपनीज रहे, जैसे मान लीजिए एलजी एक कंपनी है, सैमसंग एक कंपनी है, एप्पल एक कंपनी है, जो बड़ी बड़ी कंपनी रहती है अदर देन नेचुरल, अदर देन इंडिविजुअल, उनके लिए सेम इन्वेंशन अगर वो फाइल कर रही तो उनको लगभग 28,000 फाइल करना होता है। 28,000 उसको पे करना होता है। कौन सी कंडीशन में? अगर आप उसको ऑनलाइन फाइल कर रहे हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लगभग 80% तक कम पे करना होता है। किसको? अगर आप एक स्टूडेंट है, एक फैकल्टी है, आपके पास एक कोई स्टार्टअप है, या आपकी कंपनी एमएसएमई में रजिस्टर्ड है, या कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट के नाम से आपका इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड है, तो आपको लगभग 80% तक कम आपको पे करना रहता है। फाइल कैसे कर सकते हो? आप ऑनलाइन भी फाइल कर सकते हो। वेबसाइट रहती है आईपी इंडिया, ऑनलाइन के नाम से जाओगे। आईपी मींस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तो आईपी इंडिया पे आप सर्च करते हो तो वहां से आपको इस तरह का एक होम पेज आपको एक दिखता है, अपीयर होता है। उस पे आपको पेटेंट्स, डिजाइन, ट्रेडमार्क, जीआई, वो सारी सारी इस पे आपको दिया गया है। इस पे आप एक कॉम्प्रिहेंसिव ई फाइलिंग का एक ऑप्शन रहता है, यानी कि ई फाइलिंग। तो आप इस पे ई फाइलिंग पे जब आप क्लिक करते हो तो इस इसमें डिजिटल यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, अपने डिजिटल सिग्नेचर क्रिएट भी कर सकते हो। ये करने के बाद एक रहता है एक्सपेडाइट एग्जामिनेशन। एक्सपेडाइट मींस फास्ट कंडीशन में एग्जामिनेशन, यानी कि स्पीडी कंडीशन में एग्जामिनेशन। आपने कोई पेटेंट के लिए फाइल किया और आप चाहते हो कि उसका जल्दी से जल्दी उसका एग्जामिनेशन हो, जल्दी से जल्दी आपको उसकी रिपोर्ट मिले, जल्दी से जल्दी आपका पेटेंट ग्रांट हो, तो उस कंडीशन में हम इस तरह के एग्जामिनेशन को हम एक्सपेडाइट एग्जामिनेशन बोलते हैं। उस एग्जामिनेशन को हम स्पीडी एग्जामिनेशन कहा जाता है। तो किस कंडीशन में हम स्पीडी एग्जामिनेशन करवा सकते हैं, किस कंडीशन में हम एक्सपेडाइट करवा सकते हैं? तो फर्स्ट कंडीशन है कि अगर मान लीजिए आपकी कंपनी एक स्टार्टअप के अंदर रजिस्टर्ड है, अगर आप एक स्टार्टअप कंपनी है, आपकी कंपनी अगर स्टार्टअप में रजिस्टर्ड है, या स्मॉल एंटिटी यानी कि एमएसएमई में रजिस्टर्ड है, या एप्लीकेंट इज ए फीमेल, अगर कोई आवेदक है वो महिला है, मान लीजिए मोर देन वन एप्लीकेंट है, 3 से 4 लोगों ने मिलकर फाइल किया, अगर उसके अंदर भी अगर सिंगल एप्लीकेंट भी अगर फीमेल है तो उस कंडीशन में भी आप एक्सपेडाइट फाइल कर सकते हो। अगर कोई गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, या इंडिया एज ए आईएसए आईपीए इन द पीसीटी। पीसीटी एक पेटेंट कॉपरेशन ट्रीटीज रहती है फॉरेन कंट्रीज के साथ। एक आपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुना होगा, वाइपो, WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। उसमें आपको क्या करना होता है, जब भी आप उसके अंदर फाइल करते हो और आप अपने एप्लीकेशन का एग्जामिनेशन करवाने के लिए जिस भी कंट्री को चूज करते हो, मान लीजिए आपने वाइपो में फाइल किया और आप चाहते हो कि इंडिया को आपको सेलेक्ट करना है, इंडिया उस एप्लीकेशन का एग्जामिनेशन करे आपकी एप्लीकेशन का, यानी कि इंडिया को आप एज ए आईएसए सेलेक्ट करते हो, तो उस कंडीशन में भी आप एक्सपेडाइट करवा सकते हो। या कुछ फिर फॉरेन कंट्रीज के साथ ट्रीटी रहती है, जो कन्वेंशनल कंट्रीज है, ट्रीटीज है, उस कंडीशन में भी आप एक्सपेडाइट करवा सकते हो। तो ये सारी सारी कंडीशंस में आप एक्सपेडाइट करवा सकते हो। तो जैसे हम स्टार्टअप की बात करें कि स्टार्टअप क्या है, स्टार्टअप इंडिया स्कीम है क्या?
तो स्टार्टअप जो स्कीम है वो लगभग 2016 या 2017 के अंदर शुरू हुई थी। तो स्टार्टअप होता क्या है? व्हाट इज स्टार्टअप? द टर्म startup refers to a company in the first stage of operations. A startup is a company that is in the initial stage of business. जब भी आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हो तो वो स्टार्टअप हो सकता है। कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन ये है कि एन एंटाइटी इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड इन इंडिया। आपकी जो कंपनी है वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए इंडिया के अंदर। वो एक प्राइवेट कंपनी होनी चाहिए या फिर वो एलएलपी के अंदर रजिस्टर्ड हो सकती है। इसमें अलग कंपनी से कुछ क्राइटेरियाज रहते हैं। एलएलपी मींस लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। यानी कि फर्स्ट कंडीशन तो ये है कि आपकी कंपनी एक प्राइवेट कंपनी हो या एलएलपी के अंदर रजिस्टर्ड हो। दूसरी कि नॉट ओल्डर देन 5 ईयर, यानी कि 5 साल से ज्यादा वो पुरानी नहीं होनी चाहिए आपकी कंपनी। Annual turnover not exceeding 100 crore in any of the type preceding financial year. जो एनुअल जो टर्नओवर है आपकी कंपनी का वो 100 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हालांकि स्टार्टिंग में जब स्टार्टअप को लेके आए थे प्राइम मिनिस्टर, तब इसको एनुअल टर्नओवर रखा गया था 25 करोड़ का, लेकिन बाद में इसको बढ़ा के अभी 100 करोड़ किया है। यानी कि 100 करोड़ से ज्यादा आपकी कंपनी का टर्नओवर नहीं होना चाहिए। अगर मोर देन 100 करोड़ हो जाता है तब आपका जो स्टार्टअप है, तब आपकी कंपनी उस कंडीशन में यूनिकॉर्न बन जाती है। आपने सुना होगा आजकल मीडिया में आता रहता है यूनिकॉर्न, स्टार्टअप, ये सब आते रहते हैं। यानी कि आपका स्टार्टअप यूनिकॉर्न में कब कन्वर्ट हो जाता है? जब आपकी कंपनी का टर्नओवर कितना हो जाए? मोर देन 100 करोड़, यानी कि $1 बिलियन से भी ज्यादा हो जाए, तब आपकी कंपनी वो एक यूनिकॉर्न बन जाती है। और आज के टाइम में इंडिया के पास लगभग 106 यूनिकॉर्न है और लगातार बढ़ रहे हैं। और स्टार्टअप की भी संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। अगस्त के फर्स्ट वीक तक लगभग 75,000 स्टार्टअप थे इंडिया के पास। इतनी स्टार्टअप के अंदर रजिस्टर्ड कंपनी है। इसका एम्स क्या था? किस तरह से इसको लाया गया था स्कीम को? एम्स टू वर्क टुवर्ड्स इनोवेशन, डेवलपमेंट, कमर्शियलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोसेस या सर्विसेज ड्रिवन बाय टेक्नोलॉजी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इसका एम्स यही था कि कोई भी अगर किसी भी के अंदर कोई आइडिया आ रहा है, कोई टेक्नोलॉजिकल आइडिया आ रहा है, अगर कोई इनोवेशन से रिलेटेड कोई आइडिया है, तो आप अपनी उस आइडिया को अपनी एक कंपनी बना सकते हो। उस कंपनी को आप स्टार्टअप के अंदर रजिस्टर करवा सकते हो। यानी कि आपका आइडिया इनोवेटिव होना चाहिए, कोई टेक्निकल आइडिया होना चाहिए, चाहे वो प्रोडक्ट हो या फिर प्रोसेस या सर्विस से कोई रिलेटेड हो। इट्स नॉट फॉर्म बाय स्प्लिटिंग अप और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ए बिजनेस ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस। यानी कि अगर मान लीजिए कोई पुरानी कंपनी है, अगर वो स्प्लिट हो गई, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई, तो उस कंडीशन में उस कंपनी को स्टार्टअप में नहीं माना जाएगा। जैसे आपने देखा होगा पहले एक हीरो होंडा नाम से कंपनी थी, बाद में वो स्प्लिट हो गई, हीरो अलग हो गया, होंडा अलग हो गया। तो उस कंडीशन में उस कंपनी को, हीरो एंड होंडा को, अलग-अलग स्टार्टअप नहीं माना जाएगा, यानी कि स्प्लिट नहीं होना चाहिए। तो ये बेसिक कंडीशन है स्टार्टअप की, किस तरह से हमें स्टार्टअप के अंदर रजिस्टर करवाना है। अगर आप ज्यादा जानकारी चाहते हो तो इस पे स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट पे, उस पे एफएक्यूज काफी सारे क्वेश्चंस दिए गए, उसके आंसर्स भी दिए गए, तो आप उसमें देख सकते हो कि आपकी कंपनी किस तरह से आप उसके अंदर स्टार्टअप के अंदर रजिस्टर करवा सकते हो। या फिर डीपीआईआईटी की वेबसाइट पे भी जा सकते हो, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की वेबसाइट पे भी पूरा का पूरा दिया गया, या फिर आईपी इंडिया की वेबसाइट पे भी आप चेक कर सकते हो। तो जब भी आप पेटेंट के लिए फाइल करते हो तो हम उसका स्क्रीनिंग एंड क्लासिफिकेशन क्या करते हैं, कैसे करते हैं? जैसे आपने एप्लीकेशन फाइल किया पेटेंट्स के लिए, एप्लीकेंट ने, तो सबसे पहले तो उसकी स्क्रीनिंग की जाती है। स्क्रीनिंग इन द सेंस कि वो एप्लीकेशन किस फील्ड से रिलेटेड है। वो केमिस्ट्री से रिलेटेड है, वो बायोटेक से रिलेटेड है, वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, वो पॉलीमर से रिलेटेड है, या फिर इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है। इनके अलग-अलग ग्रुप बनाए गए हैं। उन अगर उसमें फिर उसकी स्क्रीनिंग होती है, अगर वो उसके बाद उसका क्या 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 देखा जाता है कि इन्वेंशन रिलेटिंग टू द एटॉमिक एनर्जी। अगर उसमें किसी भी तरह की एटॉमिक एनर्जी का यूज तो नहीं हो रहा, किसी भी तरह के रेडियो आइसोटोप का यूज तो नहीं हो रहा जो पब्लिक के लिए हार्मफुल है। अगर इस तरह का कुछ क्राइटेरिया, इस तरह की कुछ कंडीशन पाई जाती है, तो उसको फिर एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट को रेफर किया जाता है, ऑनलाइन ही रेफर किया जाता है। उसके बाद में उसकी परमिशन का वेट किया जाता है। अगर आपकी एप्लीकेशन में किसी तरह का कोई डिफेंस रिलेटेड कुछ मटेरियल यूज किया जा रहा है, किसी भी तरह का कोई गन पाउडर यूज किया जा रहा है, कोई भी डिफेंस रिलेटेड जो भी आपका कुछ मटेरियल यूज किया जा रहा है, तो उस एप्लीकेशन को ऑनलाइन में ही उसको डीआरडीओ को रेफर किया जाता है। उसके बाद में आपकी एप्लीकेशन का पब्लिकेशन होता है और फिर वो एग्जामिनर्स को अलॉटमेंट होता है उसका, अलग-अलग फील्ड के, केमिस्ट्री, बायोटेक, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, वो डिपेंड करता है किस तरह की आपने फाइल किया है। फिर इसमें 2 तरह के एग्जामिनेशंस रहते हैं, फॉर्मल एग्जामिनेशंस एंड टेक्निकल एग्जामिनेशन। फॉर्मल में हम चेक करते हैं कि कितने सारे जो फॉर्म रिक्वायरमेंट है वो सारे फाइल किए नहीं किए। जैसे हमने बताया फॉर्म 1 था, फॉर्म 2, फॉर्म 3, 5, 28 जो भी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद उसका टेक्निकल इन द सेंस कि आपने जो भी जिस भी आइडिया के लिए आपने फाइल किया है, अगर वो आइडिया पहले से रिपोर्टेड तो नहीं है, पहले से कहीं भी रजिस्टर्ड तो नहीं है किसी भी बुक में या कहीं भी डाटाबेस के अंदर रजिस्टर्ड तो नहीं है, उसको चेक किया जाता है। उसके बाद में उसकी एक रिपोर्ट
बनती है, उस रिपोर्ट को हम बोलते हैं FER, फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट। उस रिपोर्ट के बाद में आपको उसका एक रिप्लाई देना होता है विद इन द 6 मंथ्स में। हालांकि आप उसको 3 मंथ का एक्सटेंशन भी ले सकते हो, और उसके बाद में उसकी आप चाहो तो उसकी हियरिंग भी हो सकती है ऑनलाइन आइदर ऑफलाइन। उसके बाद में अगर आपके आर्ग्यूमेंट प्रॉपर रहते हैं तो आपको उसका पेटेंट आपको ग्रांट हो जाता है। और टाइमलाइंस क्या रहती है, जैसे प्रोविजनल टू कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन आपका जो डिटेल्स जो आपका इन्वेंशन है उसको हम कंप्लीट स्पेसिफिकेशन के नाम से जानते हैं। एक होता है प्रोविजनल। प्रोविजनल मींस अगर मान लीजिए आप इंडियन रेजिडेंट है, भारत के ही नागरिक हैं, तो आपके दिमाग में किसी भी तरह का आइडिया है, बट आप चाहते हो कि आप उसको जल्दी से जल्दी फाइल करना है ताकि कोई दूसरा कोई उसकी डेट कोई प्रायोरिटी डेट किसी और को ना मिले, यानी कि आपका कोई कंपटीटर भी उस सेम आइडिया पे काम कर रहा है, तो आप चाहते हो कि जल्दी से जल्दी उसको आपके नाम से रजिस्टर करवाना है, तो आप उसको क्या करोगे, उसको प्रोविजनली फाइल करोगे। फिर उस कंडीशन में आपको आपके जो आइडिया है, जो आपका डाटा है, पूरा टेक्निकल डाटा है, आप उसको विद इन द 12 मंथ्स के अंदर पूरा फाइल कर सकते हो। यानी कि 1 साल के अंदर आप उसको पूरा कंप्लीट आप उसको फाइल कर सकते हो। उस कंडीशन में क्या रहता है, जो आपका कॉम्पिटिटर आपसे अगर 3 महीने बाद या 1 दिन भी बाद भी फाइल करता है, तो उस कंडीशन में भी आपकी जो प्रायोरिटी डेट है आपके नाम से मानी जाती है, क्योंकि सबसे पहले उसको आपने फाइल किया है। ये होता है रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, जो आरक्यू फॉर्म था, फॉर्म 18 था, इसको आपको विद इन द 48 मंथ के अंदर फाइल करना होता है, यानी कि 4 ईयर के अंदर आपको फाइल करना है। फिर जब फाइल कर देते हो तो आपकी एप्लीकेशन का एग्जामिनेशन होता है, और उस एग्जामिनेशन के बाद आपको एक रिपोर्ट मिलती है जिसको हम FER के नाम से जानते हैं, फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट, जिसको आपको विद इन द 6 मंथ्स के अंदर रिप्लाई देना है। फॉर्म 3, अगर आपने सेम इन्वेंशन को किसी फॉरेन कंट्री में भी फाइल किया है, तो आपको फॉर्म 3 के माध्यम से इंडिया में बताना होता है विद इन द 6 मंथ्स में। फॉर्म 5, अगर एप्लीकेंट और इन्वेंटर डिफरेंट है तो आपको विद इन द 1 मंथ में बताना है। तो इस तरह से कुछ टाइमलाइंस रहती है। हाँ जी। तो जब आपका पेटेंट आप फाइल करते हो तो इस तरह से आपको एक पेटेंट का सर्टिफिकेट दिया जाता है। जब आपका पेटेंट ग्रांट हो जाता है तो उस पे आपकी एक पेटेंट नंबर मेंशन रहता है, यूनिक पेटेंट नंबर, आपकी एप्लीकेशन नंबर, जिस दिन आपने फाइल किया था वो एप्लीकेशन नंबर इसमें मेंशन रहती है, डेट ऑफ फाइलिंग मेंशन रहती है। इसी डेट ऑफ फाइलिंग के 20 ईयर्स तक आपको उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या प्रोसेस जो भी आपने फाइल किया है प्रोडक्ट या प्रोसेस के लिए, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या प्रोसेस पे आपकी मोनोपोली रहती है मार्केट में 20 इयर्स तक। 20 साल तक कोई भी अदर पर्सन उसको बना नहीं सकता, उसको बेच नहीं सकता, उसको यूज नहीं कर सकता। तो पेटेंट का जो प्रोटेक्शन है वो 20 इयर्स के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करवाती है। तो ये तो पेटेंट था। पेटेंट के अंदर हमने टेक्नोलॉजी की बात की, हमने आइडिया की बात की। जो भी टेक्नोलॉजी आप इन्वेंट करते हो उसको आप पेटेंट एक्ट में रजिस्टर करवाते हो। समझ में आ रहा है सभी के? यस सर, प्रेजेंटेशन बहुत बहुत अच्छा है, एकदम सिंपल है, आप कंटिन्यू करिए। ओके ओके, थैंक यू। अभी हम बात करें डिजाइन्स की। डिजाइन को हम इंडस्ट्रियल डिजाइन के नाम से भी जानते हैं। इंडस्ट्रियल डिजाइन एक 2000 के अंदर आया था, और डिजाइन रूल्स 2001 में आए थे। डिजाइन्स क्या होता है? डिजाइन्स ऑर्नामेंटल और एस्थेटिक एस्पेक्ट्स ऑन एन आर्टिकल, फीचर्स ऑफ शेप, कॉन्फ़िगरेशन, पैटर्न, ऑर्नामेंट और कंपोजिशन ऑफ लाइंस और कलर अप्लाई टू एनी आर्टिकल whether in 2D or in 3D or in both form by any industrial process or means whether manual, mechanical or chemical। डिजाइन्स अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें, जैसे आपने देखा होगा कि आप जो पेन ड्राइव यूज करते हो, अगर वो अलग अलग डिफरेंट कंपनी का है तो उसका डिजाइन डिफरेंट रहता है। जो भी आप स्कूटी यूज करते हो, स्कूटी चलाते हो, आपने देखा होगा उसका भी अगर जुपिटर है तो उसका अलग डिजाइन है, होंडा की है तो अलग डिजाइन है, सुजुकी है उसका अलग डिजाइन है। जिस कंपनी की आप कार यूज कर रहे हो, अलग कंपनी की कार का भी डिजाइन अलग अलग रहता है। जो आप मोबाइल यूज कर रहे हो, अलग अलग कंपनी की आप मोबाइल यूज कर रहे हो, उनका भी डिजाइन अलग अलग रहता है। तो डिजाइन के अंदर हम इंडस्ट्रियल डिजाइन के अंदर हम किसी भी प्रोडक्ट के एस्थेटिक अपीयरेंस की बात करते हैं। मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी कंपनी के सीईओ है, किसी कंपनी के ओनर है, आपकी कंपनी कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाती है और उस प्रोडक्ट का कोई आपने कोई यूनिक डिजाइन बनाया है और आपको लगता है कि इस डिजाइन की काफी डिमांड रहेगी, तो उस डिजाइन को कोई अदर कॉम्पिटिटर कंपनी उसको कॉपी ना कर ले, तो इसलिए सबसे पहले आपको उस डिजाइन को इंडस्ट्रियल डिजाइन एक्ट में रजिस्टर करवाना पड़ेगा, तभी आपको उसका प्रोटेक्शन मिल पाएगा। यानी कि डिजाइन के अंदर हम किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के एस्थेटिक अपीयरेंस की बात करते हैं, एस्थेटिक डिजाइन की बात करते हैं। तो जितने भी डिजाइनर जो फैशन डिजाइनर रहते हैं, वो सबसे पहले जितने भी जैसे आपने मनीष मल्होत्रा का या सब्यसाची का नाम सुना है,
तो जितने भी फेमस डिजाइनर है, फैशन डिजाइनर है, वो क्या करते हैं, सबसे पहले अपने डिजाइन को क्या करते हैं, डिजाइन्स एक्ट के अंदर उसको रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। यानी कि किसी भी प्रोडक्ट का डिजाइन, जैसे आप कई बार हम गाड़ी खरीदते हैं तो हमारा एक फिक्स बजट रहता है कि इस बजट के अंदर हमको कोई कार परचेज करनी है, स्कूटी परचेज करनी है। फिर उसके अंदर हम देखते हैं कि इसमें क्या टेक्नोलॉजी है। तो टेक्नोलॉजी भी अगर सेम है तो फिर हम देखते हैं उसका डिजाइन किसका बेटर है, इसका एस्थेटिक अपीयरेंस किसकी अच्छी है। तो हम उस डिजाइन भी एक तरह का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, क्योंकि वो भी एक बौद्धिक संपदा है। उसको भी एक पर्टिकुलर उस कंपनी में काम करने वाला जो इंजीनियर है, जो साइंटिस्ट है, उस अपने माइंड से, अपने माइंड का यूज करके, अपने इंटेलेक्ट यूज करके उस पर्टिकुलर डिजाइन को क्रिएट करता है। इसलिए हम डिजाइन को भी हम एक तरह का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मानते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा अलग-अलग कंपनी की वॉच का डिजाइन अलग है, साइकिल का डिजाइन अलग-अलग है। इस तरह की बोतल आपने देखी होगी, तो उनका भी डिफरेंट डिजाइन रहता है हर अलग-अलग कंपनी का। इस तरह की बोतल आप घरों में जो यूज़ करते हो, उनका भी एक यूनिक डिजाइन रहता है। इवन जो बच्चों के टॉयज़ है, स्कूल बस है, अलार्म है, क्लॉक है, पेंसिल्स है, शार्पनर्स है, इन सब के अलग-अलग डिफरेंट डिजाइन रहते हैं और बच्चे डिजाइन देखकर ही उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज़ करते हैं। इवन सेट ऑफ आर्टिकल्स को भी हम डिजाइन के अंदर रजिस्टर करवा सकते हैं। सेट मीन्स a number of articles of the same general character ordinarily sold together or intend to be used together। यानी कि एक पर्टिकुलर सेट को जब हम एक साथ परचेज करते हैं, एक साथ जब कोई भी कंपनी उसको सोल्ड करती है, तो उस पर्टिकुलर सेट को भी हम क्या करते हैं, एक डिजाइन के अंदर रजिस्टर करवा सकते हैं। जैसे कोई ज्वेलरी सेट है, सोफा सेट है या फिर कोई जूती सेट है, तो एक सेट होगा तो उसको भी हम इंडस्ट्रियल डिजाइन एक्ट में प्रोटेक्ट करवा सकते हैं। अब कंडीशन क्या है डिजाइन को रजिस्टर करवाने की? फॉर ए डिजाइन टू बी रजिस्टर अंडर द डिजाइन एक्ट इट मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन तो ये है कि द डिजाइन शुड बी न्यू और ओरिजिनल। जब भी हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो फर्स्ट कंडीशन यही रहती है कि वो हमेशा न्यू होना चाहिए, वो नोवल होना चाहिए, चाहे वो पेटेंट हो, डिजाइन हो, ट्रेडमार्क हो, कॉपीराइट हो। सबसे फर्स्ट कंडीशन हमेशा रहती है कि वो नया होना चाहिए। नया इन द सेंस क्योंकि उस पर्टिकुलर जिस भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की आप बात कर रहे हो, उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को आपको अपने माइंड से जनरेट करना है, माइंड से आपको उसको प्रोड्यूस करना है, यानी कि वो एक नया होना चाहिए। The design should relate to features of shape, configuration, pattern, ornament, applied or applicable to any article. The design should be applied or applicable to any article by any industrial process। यानी इंडस्ट्रियल प्रोसेस होना चाहिए कोई ना कोई। जैसे मान लीजिए किसी ने हाथ से पेंटिंग बनाई तो उसको हम डिजाइन के अंदर रजिस्टर नहीं करवाते, या आपने कोई स्कल्पचर या कोई मूर्ति अगर आपने बनाई तो उसको भी कोई इंडस्ट्रियल प्रोसेस का उसमें यूज नहीं हुआ है तो उसको भी हम डिजाइन के अंदर रजिस्टर नहीं करवाते। तो कोई भी प्रोडक्ट जो जो उस डिजाइन का अगर इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, कोई इंडस्ट्री लेवल पे उसका कोई प्रोडक्शन है या इंडस्ट्री लेवल पे उसका डिजाइन को इम्प्लीमेंट किया गया है, तो उस पर्टिकुलर डिजाइन को हम इंडस्ट्रियल डिजाइन एक्ट में प्रोटेक्ट करवा सकते हैं। द डिजाइन शुड नॉट इंक्लूड एनी ट्रेडमार्क और कॉपीराइट। कॉपीराइट और ट्रेडमार्क से डिफरेंट होना चाहिए। जैसे आपने फेमस कंपनी का मोबाइल देखा होगा, बता सकते हैं कौन सी कंपनी का मोबाइल है? इसका भी एक यूनिक डिजाइन है, इसको सैमसंग कंपनी ने अपने नाम से रजिस्टर करवाया। तो लोग डिजाइन देख कर भी पर्टिकुलर, हाँ जी हाँ जी, फ्लिप। अगर मान लीजिए आपके पास किसी भी तरह का इनोवेटिव डिजाइन है तो आप उसको रजिस्टर करवाना चाहते हो, उसकी फीस क्या रहती है? अगर मान लीजिए आप एक इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल मीन्स आपको स्टूडेंट है, कोई भी यानी सिंगल पर्सन है, या स्मॉल एंटिटी है, स्मॉल एंटिटी मीन्स आपकी कंपनी एमएसएमई एक्ट में रजिस्टर्ड है, या कोई आपके पास कोई स्टार्टअप है, तो उस कंडीशन में आपको 1000 रुपीज फीस को पे करना होता है। और अगर सेम डिजाइन कोई बड़ी कंपनी फाइल करती है, जैसे मान लीजिए सैमसंग की कंपनी है, उसको नया डिजाइन फाइल करना है, तो उसकी फीस रहती है 4000। तो ये बेसिक डिफरेंस रहता है। और एक फॉर्म 1 आपको फाइल करना होता है, इसमें आपकी डिटेल्स रहती है, आपका एड्रेस क्या है, किस क्लास में आप फाइल कर रहे हो, आपका साइन, सिग्नेचर, डेट, वो सारा आपको मेंशन करना है। और जिस डिजाइन के लिए आपको प्रोटेक्शन चाहिए उसके 2 सेट्स आपको फाइल करने होते हैं, और ये फॉर्म वेबसाइट पे दिए गए हैं। अगर आपके पास कोई स्टार्टअप है या कोई एमएसएमई कंपनी रजिस्टर्ड है तो इसके लिए आपको एक फॉर्म 24 भी फाइल करना होता है। और इस तरह से आपको अपने डिजाइन को एक पर्सपेक्टिव व्यू के अंदर फाइल करना है। और जब आपका डिजाइन रजिस्टर्ड हो जाता है तो इस तरह का आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है डिजाइन ऑफिस से, पेटेंट ऑफिस से। और इसके अंदर एक डिजाइन नंबर लिखा होता है, और जिस दिन आपने फाइल किया था वो डेट मेंशन रहती है। इसी डेट के 10 इयर्स तक, 10 साल तक आपको प्रोटेक्शन मिलता है। पेटेंट के अंदर हम 20 इयर्स का प्रोटेक्शन देते हैं, डिजाइन के अंदर 10 साल तक का रहता है।
बट आप इसमें डिजाइन के अंदर आप उसको 5 ईयर के लिए आप उसको एक्सटेंड भी करवा सकते हो, तो टोटल 15 ईयर्स का रहता है। तो ये था डिजाइन। अब हम बात करते हैं ट्रेड मार्क की। ट्रेड मीन्स बिजनेस, बिजनेस करने का एक मार्क। आपने सारे लोगो देखे होंगे अलग कंपनी के, लेवाइस का देखा है, फेसबुक का, इंस्टा का, ट्विटर का, सुजुकी, हुंडई, गूगल, व्हाट्सएप, जितने भी आपने लोगो देखे, कभी आपने नोटिस किया कि सबके लोगो डिफरेंट है, किसी के भी लोगो सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भी कंपनी अपना नया लोगो जनरेट करती है उसको सबसे पहले ट्रेडमार्क एक्ट में रजिस्टर करवाती है। और ये भी एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि आपको जो भी आप लोगो जनरेट कर रहे हो, इनोवेट कर रहे हो, उसमें भी आपको अपने माइंड की जरूरत पड़ती है। तो ये भी एक तरह का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जिसमें आप अपना इंटेलेक्ट यूज करके उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को जनरेट कर रहे हो। तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है? ए ट्रेडमार्क इज एनी वर्ड, नेम, सिंबल और डिवाइस और एनी कॉम्बिनेशन thereof identify and distinguish the source of the goods or service of one trader from those of others। मान लीजिए 10 अलग कंपनी के आपके पास लैपटॉप रखे गए हैं और हर अलग कंपनी के है, उस पे पर्टिकुलर कंपनी का एक लोगो भी लगा है। आपको कह दिया जाए कि आपको एक पर्टिकुलर कंपनी का एक लैपटॉप लेके आना है, मान लीजिए एप्पल कंपनी आपको लैपटॉप सेलेक्ट करना है, तो आप उस पे क्या करोगे? जो हाफ कट एप्पल है उस बात से अंदाजा लगा लो कि ये लोगो एप्पल कंपनी का है। ये सैमसंग का डिफरेंट लोगो रहेगा या एलजी का भी डिफरेंट लोगो रहेगा। तो ट्रेडमार्क क्या हेल्प करता है? आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है आपके प्रोडक्ट की। यानी कि आपके माइंड में जैसे नाइकी का लोगो देखते दूर से पहचान जाते हो कि ये पर्टिकुलर नाइकी कंपनी का लोगो है। फंक्शंस क्या है? प्रोवाइड्स एक्सक्लूसिव मोनोपोली ओवर ए क्लास ऑफ गुड्स और सर्विस, अलाउ ए बिजनेस एंटिटी टू बिल्ड पब्लिक गुडविल एंड ब्रांड रेपुटेशन। और जब आपके प्रोडक्ट के किसी पर्टिकुलर कंपनी के प्रोडक्ट अच्छे होते हैं तो लोग उस पर्टिकुलर सिंबल देख के ही चाहे उसका कितनी कॉस्ट हो उसको परचेज करते हैं। तो ट्रेडमार्क हेल्प करता है आपको एक ब्रांड रेपुटेशन जनरेट करने में। ऐसे कस्टमर क्वालिटी गुड्स और सर्विस। तो इसका सब्जेक्ट मैटर क्या रहता है? जैसे गूगल का अलग डिफरेंट है, एडिडास का डिफरेंट है। अगर आपने कोलंबिया प्रोडक्शन हाउस की मूवी देखी है तो उसमें एक स्टार्टिंग में एक मूविंग मार्क आता है एक महिला का, तो वो भी एक तरह का एक ट्रेडमार्क है। कोका कोला का एक डिफरेंट लोगो है, Naukri.com का एक डिफरेंट लोगो है। साउंड्स कैन बी रजिस्टर्ड अंडर द ट्रेडमार्क। साउंड्स को भी हम ट्रेडमार्क में रजिस्टर करवा सकते हैं, क्योंकि जैसे आपने नोकिया की वेल नोन ट्यून सभी ने सुनी है, इंटेल की एक अलग ट्यून है, एप्पल की अलग ट्यून है। इवन आप अगर हॉलीवुड की मूवी देखते हो तो उसमें एक मेट्रो गोल्डविन मेयर के नाम से एक दहाड़ते हुए एक शेर की पिक्चर आती है स्टार्टिंग में, तो वो उसका एक अलग साउंड रहता है। कपिल शर्मा शो देखते हो आप, उसकी एक अलग ट्यून है। केबीसी अलग तरह से उसका एक अलग ट्यून है। तो एक साउंड्स है उनको भी हम क्या कहते हैं ट्रेडमार्क के अंदर रजिस्टर करवा सकते हैं। यस राज फिल्म का एक अलग अपना एक अलग साउंड है, वो साउंड भी ट्रेडमार्क एक्ट में रजिस्टर करवा सकते हैं। कंडीशन क्या है गुड ट्रेडमार्क की? इनहेरेंट होना चाहिए, एक्वायर्ड होना चाहिए, यानी कि उस पर्टिकुलर लोगों को या जो भी आप साउंड क्रिएट कर रहे हो वो इनहेरेंट होना चाहिए, अपने माइंड से आपको उसको जनरेट करना है, कहीं से भी कॉपी पेस्ट नहीं करना है। नॉट डिसेप्टिवली सिमिलर। कई बार क्या करते हैं मार्केट में जो एग्जिस्टिंग जो प्रोडक्ट रहते हैं, एग्जिस्टिंग जो लोगो होते हैं, तो लोग उनसे मिलते जुलते बना के ले आते हैं। जैसे इंडिया के अंदर क्या आपने बिस्लेरी की बोतल देखी होगी, कितने नाम से आती है, कोई बिल्सरी है, कोई ब्रिस्ली है, कोई डबल एल लगा देता है, कोई डबल एस लगा देता है। तो इस तरह के जो भ्रामक इस तरह के हमें नहीं करना है, हमको ऑनेस्टली अडॉप्ट करना है पर्टिकुलर लोगों को। नॉट सिमिलर टू ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मार्क। इसके लिए अगर आप कोई भी ट्रेडमार्क के लिए फाइल करना चाहते हो और आपको लगता है कि पहले से एग्जिस्टिंग तो नहीं है, तो इसके लिए ट्रेडमार्क सर्च फाइंडर के नाम से एक वेबसाइट भी है, तो वहां पे जाके आप अपने लोगों को चेक कर सकते हो कि पहले से एग्जिस्टिंग तो नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई इस तरह से ले आए, हाइक से नाइक से मिलता जुलता हाइक के नाम से फाइल कर दिया किसी ने, जो केएफसी से मिलता जुलता केएफसी के नाम से फाइल कर दिया, या प्यूमा से मिलता जुलता फॉर्म के नाम से किसी ने फाइल कर दिया। तो इस तरह से डिसेप्टिवली सिमिलर नहीं होना चाहिए, इस तरह को अवॉइड करना चाहिए। या जैसे कोई बिस्लेरी के नाम से, कोई बेल्सरी के नाम से फाइल कर रहा है, कोई ब्रिस्ली के नाम से फाइल कर रहा है, तो ये सारे सारे फेक प्रोडक्ट रहते हैं। तो हमें एक यूनिक लोगो को जनरेट करना होता है उसको फाइल करने के लिए। हाउ टू इंडिकेट योर ट्रेडमार्क? कई बार आपने देखा होगा किसी भी प्रोडक्ट पे या किसी भी लोगो पे टीएम लिखा रहता है छोटा सा, या उस पे आर लिखा रहता है। टीएम और आर में बेसिक डिफरेंस ये है कि टीएम का मतलब होता है कि अभी तक उस लोगो का कंपनी ने रजिस्टर नहीं करवाया, रजिस्ट्रेशन उसका पेंडिंग है, अभी ट्रेडमार्क ऑफिस में उसका पेंडिंग है या उसको रजिस्ट्रेशन करवाया ही नहीं है।
यानी कि वो अनरजिस्टर्ड लोगो है, तो उस कंडीशन में वो टीएम यूज करता है। और जब पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद उस लोगो का रजिस्ट्रेशन हो जाता है ट्रेडमार्क ऑफिस के अंदर, ट्रेडमार्क एक्ट के अंदर उसका जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तो उसको फिर कंपनी आर से डिनोट करती है। तो ये बेसिक डिफरेंस रहता है टीएम एंड आर के मींस आर मतलब रजिस्टर्ड लोगो, टीएम मींस अनरजिस्टर्ड, उसका अभी तक रजिस्ट्रेशन पेंडिंग है। और इसका जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है एक बार लोगों का कंपनी का, तो 10 इयर्स के लिए उसका रहता है। हालांकि आप उसको 10-10 साल में उसको रिन्यू भी करवा सकते हो जब तक आप चाहो, जब तक आपकी कंपनी है, बट इनिशियली ये 10 इयर्स के लिए ही रजिस्टर्ड रहता है। तो ट्रेडमार्क के अंदर हम पर्टिकुलर कंपनी के लोगों की सिंबल की बात करते हैं, हम बात करते हैं कॉपीराइट्स। व्हाट इज कॉपीराइट? इट इज ए बंडल ऑफ राइट्स, इट इज ऑटोमेटिक राइट्स, exclusive rights given to creators of original work of authorship, allow the owner to choose the way his her copyrighted works are made available to the public, prevent unauthorized copying या फिर reproduction। बंडल ऑफ राइट कैसे हैं अभी हम पढ़ेंगे। तो कॉपीराइट है क्या? कॉपीराइट इज एन एक्सक्लूसिव लीगल राइट ग्रांटेड टू क्रिएटर्स ऑन एक्सप्रेशन ऑफ एन आइडिया। जब भी आपके दिमाग में किसी भी तरह की कोई क्रिएटिविटी आती है, मान लीजिए आपको कोई पोएम लिखना है, कोई भी आपके अंदर कोई मूवी माइंड के अंदर कोई मूवी की स्टोरी आपको लिखनी है, कोई भी ड्रामा आपको क्रिएट करना है, तो वो सारा का सारा जो मटेरियल है, जो राइट है, वो आपका कॉपीराइट एक्ट के अंदर रजिस्टर किया जाता है। कॉपीराइट ऑनर हिज राइट बंडल ऑफ राइट्स, इट मींस टू रिप्रोड्यूस, ट्रांसलेट, अडेप्ट, परफॉर्म, डिस्ट्रीब्यूट, यानी कि एक सिंगल जो भी आपने कुछ भी लिखा है, तो उसके लिए आपको मल्टीपल राइट्स आपको प्रोवाइड करवाता है कॉपीराइट। यानी आप उसको ट्रांसलेट करने का भी आपके पास राइट है, उसको आप अडेप्ट कैसे करना है, उसको रिप्रोड्यूस कैसे करना है, कुछ भी उसके अंदर परफॉर्म कैसे करना है, वो सारा का सारा राइट एक बंडल ऑफ राइट रहता है, वो सारा का सारा ऑथर के पास रहता है। however registration is not mandatory। जब भी आपके दिमाग में इस तरह कुछ भी लिखते हो, तो क्रिएशन से ही आपको एक राइट मिलता है, ऑप्शनल रहता है इसका राइट। सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉपीराइट, लिटरेरी वर्क। लिटरेरी वर्क मीन्स आपने कोई भी नया पोएम लिखा, कोई नया बुक लिख रहे हो, कोई रिसर्च आर्टिकल लिख रहे हो, तो वो आपका एक लिटरेरी वर्क है, वो आपका कॉपीराइट हो सकता है। आर्टिस्टिक वर्क, जैसे मान लीजिए आपने कोई पेंटिंग या कोई भी ड्राइंग आपने क्रिएट की, जैसे हमने डिजाइन के अंदर भी बात की थी कि हम पेंटिंग को हम डिजाइन के अंदर रजिस्टर नहीं करवाते, या कोई स्कल्पचर आपने कोई मूर्ति अगर आपने बनाई है, उसको भी हम डिजाइन के अंदर रजिस्टर नहीं करवाते, क्योंकि वो एक इंडस्ट्रियल लेवल पे कोई उनका कोई प्रोडक्शन नहीं है, इंडस्ट्रियल लेवल का कोई इंस्टॉलेशन नहीं हो रहा है। तो आर्टिस्टिक जो वर्क है, जो पेंटिंग है, ड्राइंग्स है, वो सारा का सारा आपका किसमें, वो भी कॉपीराइट के अंदर रजिस्टर किया जाता है। या आपने कोई यूनिक ड्रामा क्रिएट किया है, या आपका कोई म्यूजिकल वर्क है, या कोई साउंड रिकॉर्डिंग वर्क्स है, या कोई मूवी की आप स्टोरी लिख रहे हो, सिनेमेटोग्राफ फिल्म अगर आप कोई बना रहे हो, तो वो जो स्टोरी है वो भी आपका एक कॉपीराइट हो सकता है। तो ये इतने सारे सब्जेक्ट मैटर रहते हैं कॉपीराइट के। कॉपीराइट आपको दो तरह के राइट प्रोवाइड करवाता है मेनली, इकोनॉमिक राइट एज वेल एज मोरल राइट। इकोनॉमिक राइट्स अलाउ राइट ओनर टू डिराइव फाइनेंशियल रिवार्ड फ्रॉम द यूज ऑफ दियर वर्क्स बाय अदर। यानी कि जब भी आप के नाम से कोई कॉपीराइट एक्ट रजिस्टर्ड हो जाता है, चाहे आप बुक लिखी हो, कोई मूवी की स्टोरी लिखी हो, तो आपको एक इकोनॉमिक हेल्प मिलती है, आपको एक फाइनेंशियल रिवार्ड मिलता है। दूसरा, आपको एक मोरल राइट, मोरल राइट मीन्स आपकी परमिशन के बिना कोई भी अदर पर्सन उसको इवन ट्रांसलेट भी नहीं कर सकता, उसको रिप्रोड्यूस भी नहीं कर सकता, उसको बेच भी नहीं सकता। तो आपके पास दो तरह के राइट कॉपीराइट प्रोवाइड करवाता है, इकोनॉमिक राइट एज वेल एज मोरल राइट। हालांकि आप उसको ट्रांसफर राइट में कन्वर्ट करवा सकते हो, वो डिपेंड करता है। प्रोटेक्शन क्या रहता है, जैसे कि अगर मान लीजिए आपने कोई लिटरेचर लिखा है, कोई ड्रामा अगर आपने क्रिएट किया है, कोई म्यूजिकल वर्क है, तो लाइफ ऑफ ऑथर प्लस 60 ईयर, यानी कि जो पर्टिकुलर ऑथर ने जिसने ड्रामा क्रिएट किया था, या जिसने कोई रिसर्च पेपर लिखा है, कोई बुक लिखी है, कोई म्यूजिकल वर्क उसने कुछ कंपोज किया है, तो जब तक वो ऑथर जिंदा है, लाइफ ऑफ ऑथर प्लस 60 ईयर तक उसके जो नॉमिनी रहते हैं, लीगल नॉमिनी, उनका राइट मिलता है। अगर आप कोई मूवी की स्टोरी लिख रहे हो, या कोई साउंड रिकॉर्डिंग वर्क है, सिनेमेटोग्राफी, फिल्म एंड साउंड रिकॉर्डिंग, उस कंडीशन में आपको राइट रहता है 60 ईयर तक का, 60 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन। जिस दिन आपकी मूवी, जैसे कोई मूवी की स्टोरी लिखी, जिस दिन मूवी पब्लिश हो रही है पब्लिकली, तो उसके 60 ईयर तक का। ब्रॉडकास्ट रिप्रोडक्शन राइट, ब्रॉडकास्ट रिप्रोडक्शन राइट मींस आपने देखा होगा कि जैसे केबीसी एक अलग न्यूज चैनल पे आता है, आईपीएल एक अलग चैनल पे आता है, तो उनका एक ब्रॉडकास्ट रिप्रोडक्शन राइट रहता है, ब्रॉडकास्टिंग रहती है, तो उनका प्रोटेक्शन रहता है 25 ईयर फ्रॉम द ईयर फॉलोइंग द ईयर ऑफ ब्रॉडकास्ट। जिस ईयर को फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्ट हुआ था, उसके 25 ईयर्स तक। परफॉर्मेंस राइट, जो परफॉर्म करते हैं, जो म्यूजिशियन परफॉर्म करते हैं, उनको भी एक राइट रहता है कॉपीराइट एक्ट के अकॉर्डिंग।
50 years from the year following the year in which performance is made. जिस फर्स्ट टाइम उस परफॉर्मेंस को बनाया गया था, क्रिएट किया गया था, उसके 50 years तक में रजिस्टर करवाना चाहते हो तो आप उसको ऑनलाइन अदरवाइज ऑफलाइन भी फाइल कर सकते हो। इसके लिए आपको एक फॉर्म 14 फाइल करना होता है, जो वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हो आईपी इंडिया की, या तो आप उसको ऑनलाइन कर सकते हो, अदरवाइज ऑफलाइन करना है तो आप स्पीड पोस्ट या जो रजिस्टर्ड जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो पोस्ट ऑफिस उससे उसके तहत भी आप उसको फाइल कर सकते हो। फीस क्या रहती है? अगर मान लीजिए कोई नॉवल है, कोई बुक है, कोई ड्रामा है, कोई आर्टिस्टिक है, कोई म्यूजिकल वर्क है, तो उसकी फीस रहती है 500। अगर कोई बड़े लेवल पे जीएसटी लेवल पे कोई आर्टिस्टिक वर्क है तो उसकी फीस रहती है 2000 रुपीज। कोई साउंड रिकॉर्डिंग वर्क है तो 2000, और कोई मूवी की स्टोरी अगर आप लिख रहे हो तो 5000। ये कॉपीराइट के अंदर हम जनरली जो भी आपका लिटरेरी है, ड्रामेटिक है, ड्राइंग्स है, साउंड रिकॉर्डिंग वर्क है, म्यूजिकल है, मूवी की स्टोरी, सारा का सारा जो सब्जेक्ट मैटर है वो उसको हम कॉपीराइट एक्ट में प्रोटेक्ट करवाते हैं। तो ये भी एक तरह का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। क्यों? क्योंकि इसमें भी आप अपने माइंड का यूज करके उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को क्रिएट करते हो। तो कॉपीराइट इज ऑल्सो एज ए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आपकी एक बौद्धिक संपदा है। एक होता है SICLD, सेमी कंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट्स लेआउट डिजाइन। अगर हम SIC की बात करें तो इसको हम जैसे आपने देखा होगा कि अलग जो भी आप मोबाइल यूज कर रहे हो अलग अलग कंपनी का, उसमें डिफरेंट टाइप के प्रोसेसर यूज किए जाते हैं, या लैपटॉप के अंदर जो इंटीग्रेटेड चिप यूज की जाती है, उनके अंदर उस चिप की बनावट में जो ट्रांजिस्टर और जो सर्किटरी एलिमेंट का जो यूज किया जाता है, उनका डिजाइन किस तरह का है, उनकी इंटरनल जो एस्थेटिक है वो किस तरह से है, और उनकी डिजाइन पे भी वो टेक्नोलॉजी का डिसाइड होता है कि वो किस तरह से फंक्शन करेगा, पर्टिकुलर मोबाइल किस तरह से काम करेगा, पर्टिकुलर लैपटॉप किस तरह से काम करेगा। तो उनकी जो इंटरनल जो डिजाइनिंग है ट्रांजिस्टर और सर्किटरी एलिमेंट की, उसको हम SICLD एक्ट के अंदर प्रोटेक्ट करवाते हैं। ये सबसे लेटेस्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है और ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। एक सबसे इंपॉर्टेंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को हम जियोग्राफिकल इंडिकेशंस के नाम से भी जानते हैं। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं GI, अतुल्य भारत की अमूल्य निधि, इनवैल्यूएबल ट्रेजर्स ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ये जियोग्राफिकल मींस भौगोलिक और इंडिकेशन मींस संकेतक, यानी कि जब भी कोई प्रोडक्ट इंडिया के किसी जियोग्राफिकल रीजन से रिलेटेड हो तो उसको हम GI के नाम से जानते हैं। तो ए GI इज एन इंडिकेशन that identify a product that have a specific geographical origin and possess quality or reputation that are due to that origin। यानी कि जब भी कोई प्रोडक्ट इंडिया के किसी ऐसे क्षेत्र विशेष में हो रहा है कि वहां पर होने से उसमें कोई स्पेशल टेस्ट आ रहा है, उसमें कोई स्पेशल क्वालिटी आ रही है, या फिर वो प्रोडक्ट केवल और केवल वहीं पे बनने पे उसमें एक स्पेशल टेस्ट या क्वालिटी आ रही है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ज्योग्राफी के बेस पे GI टैग देती है। जैसे कि आपने अगर हम बात करें तो सबसे पहले इंडिया में दार्जिलिंग टी को GI टैग मिला था। दार्जिलिंग एक क्षेत्र विशेष वेस्ट बंगाल के अंदर दार्जिलिंग एक क्षेत्र है और वहाँ की टी काफी फेमस है। तो जब भी कोई प्रोडक्ट में अगर आपको कहीं भी एक जियोग्राफिकल एरिया की बात हो, जैसे नागपुर ऑरेंज, तो नागपुर एक पर्टिकुलर एक जियोग्राफिकल एरिया की बात हो रही है। नासिक अंगूर मींस नासिक का एक जियोग्राफिकल एरिया है। तो जब भी किसी प्रोडक्ट के साथ जियोग्राफिकल एरिया की बात होती है तो इसका मतलब वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट जियोग्राफिकल टैग से रिलेटेड है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको GI टैग दे रखा है। जैसे कि बोविली वीणा, बोविली एक आंध्रा के अंदर एक जगह है, वहाँ की वीणा काफी फेमस है। बस्तर डोगरा, बस्तर छत्तीसगढ़ में एक जगह है और वहाँ की डोगरा काफी फेमस है। वायनाड की जीरा कासला राइस, नारायणपेट की हैंडलूम साड़ीज, मदुरई जैस्मिन आपने देखा होगा जो महिलाएं गजरा यूज करती है साउथ में, सूरत की जारी क्राफ्ट, नागपुर ऑरेंज, नीलगिरी की चाय, तो ये सारे के सारे प्रोडक्ट GI से रिलेटेड हैं। दार्जिलिंग की चाय, मकराना मार्बल, मकराना मार्बल क्यों? क्योंकि राजस्थान के अंदर मकराना एक जगह है, वहाँ पे मार्बल काफी फेमस है वहाँ का, और जो ताजमहल है उसकी जो निर्माण है वो मकराना मार्बल से किया गया है। रतलामी सेव, रतलाम MP के अंदर एक जगह है, वहाँ की सेव काफी फेमस है। कांचीपुरम सिल्क, कांचीपुरम भी साउथ इंडिया में एक जगह है, एक सिटी है, वहाँ की हैंडलूम काफी फेमस है, काफी साड़ियाँ बनती हैं, तो वो भी एक तरह का GI है। कठपुतली ऑफ राजस्थान, बाग प्रिंट ऑफ मध्य प्रदेश, बंगाल पटचित्रा, चेरियाल पेंटिंग, बिद्रीवेर कर्नाटक का एक फेमस प्रोडक्ट है, GI प्रोडक्ट है। वर्ली पेंटिंग महाराष्ट्र की, बिहार का मगही पान, एपीमिडी मैंगो, कश्मीर की केसर का आपने नाम सुना होगा, शाही लीची ऑफ बिहार, कुर्ग ऑरेंज। तो जितने भी प्रोडक्ट अगर किसी क्षेत्र विशेष से रिलेटेड है, वहाँ पे उनका प्रोडक्शन हो रहा है, वहाँ पे प्रोडक्शन होने से उसमें कुछ स्पेशल टेस्ट हो, स्पेशल क्वालिटी हो, तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको GI टैग से डिनोट करती है।
अगर हम राजस्थान की बात करें तो सम वेल नोन एग्जांपल्स ऑफ जीआई टैग ऑफ राजस्थान, जैसे कोटा डोरिया का आपने नाम सुना होगा, बीकानेरी भुजिया, मोलेला क्ले वर्क, सांगानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग, बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग, थेवाट, प्रतापगढ़ की थेवाट, मकराना मार्बल, ये राजस्थान के कुछ फेमस जीआई टैग है। जीआई में मिलता है नेचर ऑफ गुड्स अंडर इंडियन जीआई एक्ट, द गुड्स हैव बीन डिवाइडेड अंडर 3 मेन कैटेगरीज। फर्स्ट है एग्रीकल्चरल लेवल पे, अगर एग्रीकल्चर लेवल पे किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हो रहा है तो उसको हम एग्रीकल्चर लेवल पे जीआई टैग देते हैं, जैसे कि बासमती राइस, बासमती, दार्जिलिंग की चाय, कंगरा टी, अल्फोंसो, महाराष्ट्र के अल्फोंसो मैंगो, तो ये एग्रीकल्चर लेवल पे इनका प्रोडक्शन हो रहा है। नासिक के अंगूर है। नेचुरल यानी कि प्राकृतिक रूप से किसी भी जगह पे प्रोडक्शन हो रहा है, जैसे मकराना मार्बल, तो मकराना के अंदर नेचुरली वहां पे उनका प्रोडक्शन होता है मकराना मार्बल का। एंड मैन्युफैक्चर्ड, या किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का एक मैन्युफैक्चरिंग हो एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में, तो उसको मैन्युफैक्चर्ड लेवल पे भी देते हैं, जैसे कि बीकानेरी भुजिया। तो बीकानेरी भुजिया का जो प्रोडक्शन है वो मैन्युफैक्चरिंग है, वो सिर्फ और सिर्फ बीकानेर के अंदर हो रही है। कोई भी अदर पर्सन जयपुर में उसका प्रोडक्शन करके बीकानेर भुजिया के नाम से नहीं बेच सकता, उसको ट्रांसपोर्ट करवा सकता है वहां से बीकानेर से, बट उस पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया के अंदर ही उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को हम बनाते हैं। जैसे बनारस की साड़ी है, कांचीपुरम की जो साड़ी है, ये मैन्युफैक्चर्ड है। तो 3 कंडीशन में जीआई टैग मिलता है, एग्रीकल्चरल, नेचुरल एंड मैन्युफैक्चर्ड। तो इतने सारे आईपी पढ़े हमने, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, जीआई, इसका मतलब आईपी इज एवरीवेयर, आईपी हर जगह है। हम जो भी प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं, इवन हम सुबह जब उठ के न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो वो भी एक तरह का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, कॉपीराइट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। जिस कप या गिलास में आप चाय पीते हो वो भी एक तरह का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, उसका एक यूनिक डिजाइन है तो वो डिजाइन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। जिस टेक्नोलॉजी से उस पर्टिकुलर कप या गिलास को बनाया गया है, जिस मशीन में बनाया गया है, तो मशीन भी एक टेक्नोलॉजी है, उस मशीन को हम पेटेंट के अंदर रजिस्टर करवाते हैं। या जिस कप या गिलास की कोई भी कंपनी में वो उसका मैन्युफैक्चरिंग हुई है, उस कंपनी का कोई कोई लोगो है, तो वो क्या है, वहां का ट्रेडमार्क है, और जो कंपनी का सारा डाटाबेस है उसका कॉपीराइट रहता है। तो आईपी इज एवरीवेयर, आईपी हर जगह, हम हर डेली लाइफ में उसको पता नहीं कितनी बार इसको यूज करते हैं। प्रोटेक्शन जैसे बताया कि पेटेंट आपको फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग 20 ईयर्स तक आपको इसकी वैलिडिटी मिलती है। डिजाइन में, इस पर्टिकुलर डिजाइन के लिए आपको 10 साल के लिए मिलता है, बट आप उसको 5 साल के लिए उसको आप एक्सटेंड भी करवा सकते हो। ट्रेडमार्क, जो भी आप लोगो ट्रेडमार्क में रजिस्टर करवाते हो या सिंबल जो रजिस्टर करवाते हो ट्रेडमार्क में, इनिशियली आपको 10 साल के लिए मिलता है, बट आप उसको जब तक आपकी कंपनी है रन करवाना चाहते हो तब तक आप उसको रिन्यू करवा सकते हो। जीआई जीआई के केस में जैसे जितने भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, जीआई एक ऐसा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है जो किसी भी एक सिंगल पर्सन को नहीं दिया जाता, सिंगल स्टूडेंट को नहीं मिलता, सिंगल फैकल्टी को नहीं मिलता, सिंगल इंस्टीट्यूट को नहीं मिलता। जीआई, क्योंकि जीआई जैसा कि नाम से स्पष्ट है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, यानी कि भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले जो फार्मर की एसोसिएशन है, जो भी वहाँ के लोग काम करते हैं, जो भी एसोसिएशन है वहाँ की, उनके नाम पे उसका जीआई टैग रजिस्टर किया जाता है। यानी कि उन जो जितने भी वहाँ के जो लोग हैं जो काम करते हैं, जैसे बासमती राइस है, तो बासमती राइस को बनाने में जहाँ के जो लोकल जो फार्मर्स रहते हैं, तो जो उनके सबके नाम से, उनकी एसोसिएशन के नाम से उसका रजिस्ट्रेशन होता है। यानी कि इसमें सिंगल एक इंडिविजुअल के नाम से कभी भी जीआई को रजिस्टर नहीं किया जाता है। कॉपीराइट के अंदर हमने देखा कि जो भी लिटरेरी वर्क है या ड्रामेटिक आर्टिस्टिक वर्क था, ये म्यूजिकल वर्क था, वो लाइफ टाइम ऑफ ऑथर प्लस 60 ईयर, यानी कि जब तक ऑथर जिंदा है प्लस उसके 60 साल तक भी लीगल नॉमिनी कोई रहता है उसके नाम से रजिस्टर रहता है। ऑल आईपी राइट्स आर टेरिटोरियल इन नेचर। टेरिटोरियल मींस एक पर्टिकुलर कंट्री स्पेसिफिक राइट है, यानी कि आपने डिजाइन का या पेटेंट का जो भी आपको प्रोटेक्शन मिला है, तो आपको एक पर्टिकुलर कंट्री में ही उसको एक प्रोटेक्शन मिलता है। आपको पेटेंट मान लीजिए इंडिया में मिला है, तो आप जापान में जाके उसको क्लेम नहीं कर सकते। अगर आपको चाहिए कि जापान में भी उसका पेटेंट मिले, तो आपको उसको जापान के अंदर भी फाइल करना पड़ेगा। यानी कि सारे के सारे जो आईपी राइट्स है वो टेरिटोरियल है। जैसे हम एक आपकी स्क्रीन पे सोनी का एक टीवी दिखाई दे रहा है, अगर इसके अंदर हम बात करें तो कितनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। तो जैसे कि सोनी का एक लोगो है, एक सिंबल है, वो कंपनी ट्रेडमार्क एक्ट में रजिस्टर करवाती है। जिस टेक्नोलॉजी पे ये टीवी काम कर रहा है, जैसे आजकल मैजिक रिमोट टेक्नोलॉजी भी आ गई, तो वो एक टेक्नोलॉजी है, वो एक तकनीक है, उस तकनीक को कंपनी पेटेंट एक्ट में रजिस्टर करवाती है। इस टीवी का एक यूनिक डिजाइन है, उस डिजाइन को कंपनी डिजाइन एक्ट में रजिस्टर करवाती है। और जो कंपनी का जो डाटाबेस है, जो रिटर्न मैनुअल्स है, जब भी हम टीवी को या मोबाइल को परचेज करते हैं, तो साथ में एक छोटी सी बुकलेट मिलती है, जो रिटर्न मैनुअल्स रहता है उस कंपनी का, वो सारा का सारा कॉपीराइट एक्ट में रजिस्टर्ड रहता है। तो एक सिंगल प्रोडक्ट में मोर देन वन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो सकती है, यानी कि सारे के सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो सकते हैं। जैसे आपको एक कोक की एक बोतल दिखाई दे रही है, इस बोतल में क्या-क्या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो सकता है? जैसे आपको सबसे पहले तो आपको लोगो दिखाई दे रहा है कोका कोला का, तो ये लोगो ट्रेडमार्क एक्ट में रजिस्टर्ड हो सकता है।
इस बोतल का एक यूनिक डिजाइन है, वो डिजाइन भी कंपनी ने रजिस्टर करवा रखा होगा इंडस्ट्रियल डिजाइन एक्ट में। और जिस मशीन के अंदर या जिस एपरेटस के अंदर या जिस डिवाइस के अंदर इस बोतल को बनाया गया है, उसको भी कंपनी ने कहीं न कहीं उसकी टेक्नोलॉजी को पेटेंट एक्ट में रजिस्टर करवाया होगा। और जो भी इसका जो डाटाबेस है कंपनी का, वो कॉपीराइट में रजिस्टर्ड हो सकता है। तो अब बात आती है कि हु कैन क्रिएट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को कौन क्रिएट कर सकता है? एनी टीचर, एनी स्टूडेंट्स, एनी पर्सन, देयर इज नो एज रेस्ट्रिक्शन। हमने देखा कि 4 साल के एक बच्चे ने भी एक रोबोट बना दिया, 15 साल की एक रम्या जोश ने एक वॉशिंग मशीन, पावर्ड वॉशिंग मशीन को जनरेट किया। यानी कि कहने का मतलब कोई भी स्टूडेंट्स कभी भी किसी भी एज में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएट कर सकता है, अपने माइंड से उस प्रॉपर्टी को क्रिएट कर सकता है और उसको रजिस्टर करवा सकता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर। वो चाहे पेटेंट हो, कॉपीराइट हो, ट्रेडमार्क हो, वो देखना है कि वो किस तरह का वर्क टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है, उसको पेटेंट एक्ट में रजिस्टर करवाएगा। अगर वो किसी प्रोडक्ट का यूनिक डिजाइन बना रहा है, तो डिजाइन में रजिस्टर करवाएगा। अगर उसने कोई नया नॉवेल लिखा है, टाइप में रजिस्टर करवाएगा। वो डिपेंड करता है किस तरह का वर्क कर रहा है। तो किसी भी एज में आप अपने वर्क को रजिस्टर करवा सकते हो। और जब आप अपने इंटेलेक्चुअल वर्क को रजिस्टर करवाते हो, तो जो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, वो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में कन्वर्ट हो जाती है। यानी कि जो आपका जो आईपी है, वो आईपीआर में कन्वर्ट हो जाता है। उस कंडीशन में आपको बौद्धिक संपदा अधिकार मिलता है भारत सरकार की तरफ से कि कोई भी अदर पर्सन बिना आपकी परमिशन के उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, प्रोसेस को बना नहीं सकता, उसको बेच नहीं सकता, उसको यूज नहीं कर सकता। उसके लिए आपको मोनोपोलिस्टिक राइट मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से। अगर आप पेटेंट लेते हो तो उसके लिए आपको 20 ईयर्स तक का प्रोटेक्शन मिलता है। अगर आपको डिजाइन रजिस्टर करवाते हो तो 10 साल के लिए मिलता है इसको, हालांकि 5 साल के लिए एक्सटेंड करवा सकते हो। अगर ट्रेडमार्क लिया है तो इनिशियली 10 ईयर्स के लिए रहता है, हालांकि आप उसको 10-10 साल के बाद उसको रिन्यू करवा सकते हो। जेई की केस में लाइफ टाइम रहता है और कॉपीराइट के केस में देखा कि लाइफ टाइम ऑफ ऑथर प्लस 60 ईयर तक रहता है। करियर अपॉर्चुनिटी, जैसे इतने सारे हमने एक्ट की बात की, पेटेंट की, डिजाइन की, ट्रेडमार्क, जीआई, कॉपीराइट, इनसे रिलेटेड टाइम टू टाइम वैकेंसीज आती रहती है। एग्जामिनर ऑफ पेटेंट्स एंड डिजाइन, एग्जामिनर ऑफ ट्रेडमार्क्स या एग्जामिनर ऑफ कॉपीराइट। इसके अलावा पेटेंट एजेंट भी बन सकते हो, ट्रेडमार्क एजेंट भी बन सकते हो। समझ में आएगा सभी की? हाँ, संगीता या आस्क टू। हाँ, मैंने कर दिया उनको अनम्यूट। संगीता मैम, Hello. Thank you, Dr. Manoj Balanji. How beautifully you have introduced us to intellectual property and intellectual property, how we can convert into intellectual property right, and how we all are unaware of these things. Today, so many participants and students, they must have come to know that their intellectual property can become their intellectual right by having copyright, by getting it patented. Sir, how beautifully such a complicated subject you have made it so, easy for us to understand. Thank you so much, sir. Thank you very much. Now I invite Dr. Priyanka, co-convener for IIC, Assistant Professor of Department of Zoology, for the question answer session and vote of thanks. Here, just to tell you, friends, under her concept research, IIT at Government College, Sambar Lake has achieved great heights. She is young and vivacious, and she is the source of great inspiration to the budding students. Thank you, Priyanka. Thank you for all your great effort. Now I welcome you. Thank you, ma'am, for this kind introduction. Good afternoon, and all. At the outset, I would like to deliver my sincere thanks to our keynote speaker, respected Sir Dr. Manoj Balan, for accepting our invitation and taking out his valuable time to make us aware about the IPR and other related issues and IP management for the startups. Sir has delivered his domain knowledge of IPR and through an extraordinary and impactful presentation in a very simple manner and covered the topic in various dimensions like patent, design, trademarks, geographical indications. Sir has told about the basic concepts, what is the patent, what is the design is actually means, other applications, filing, how we can file, what are the opportunities, what are the career
career aspects related all these things. Thank you so much, sir. And presentation was really very nice. We received more than 700 registration, and throughout the session, we can see that there were 100 participants throughout the session, sir. So it indicates its success, sir. And thank you once again. I am sure that this will really make a significant contribution in our understanding of IPR. What does this really? And we are looking forward for your another sessions, more sessions in near futures, of course, in an offline mode also. Thank you, sir. Next, I would also like to deliver my gratitude to our respective principals, sir, Dr. Gyan Prakash Daima ji, for always guiding us, providing their consistent support, and all the possible efforts that can be possible. Thank you, sir. In the same context, I would also like to pay my sincere thanks to the President IIC, Dr. Jaya Rai ma'am, for motivate us, for providing guidance and consistent support in conducting various IIC activities around the session. My special thanks to Dr. O.P. Sharma sir, Dr. Sangeeta Rotela ma'am, and Dr. Ruben Saran Mathur for contributing their extraordinary efforts to make this event successful. Last but equally important, my sincere thanks to all the participants for joining us and making the session more interactive. Thank you once again. इसके अलावा अगर if there are any queries related to this presentation, so you can raise your hand or you can drop your questions in the chat box. So I will moderate to the sir the questions and sir will answer. अगर आपकी कोई भी queries हैं, आप hand raise कर सकते हैं या आपकी questions को आप okay. So Vipin Sharma sir को हम unmute कर रहे हैं. Sir, you can ask your question directly to the Manoj sir. Vipin sir. Hello. You can ask your questions. हाँ जी बताइए. Sir, so first of all, thank for your information. Very great session for me. But please share me this PPT for my knowledge and other person's knowledge. And just I speak to say कि एक कंपनी कितने पैटर्न्स या फिर कितने लोगोस को एक प्रोडक्ट के ऊपर है ना वो पैटर्न करवा वो लोगो डिजाइन को पैटर्न कर सकती है. एक कंपनी कितने लोगों को पेटेंट करवा सकती है? या सर पहली बात तो ये कि लोगो एक अलग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है और पेटेंट एक अलग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है. लोगो तो हम ट्रेडमार्क में रजिस्टर करवा सकते हैं और पेटेंट के अंदर कोई भी हम टेक्नोलॉजी को रजिस्टर करवा सकते हैं. आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, दोबारा से रिपीट करेंगे. जैसे एप्पल है, एप्पल अपना खुद का लोगो है ना सबमिट करती है, मतलब एप्पल अपने हर प्रोडक्ट पे खुद का लोगो डालती है, लाइक उसका जो कटा हुआ सेव है दैट्स. HP है, HP अपना खुद का सिंबल. ऐसे ही अगर अपन कोई प्रोडक्ट को अगर बना रहे हैं, अपन को उस प्रोडक्ट के जो को प्रोडक्ट है उसके जो अदर प्रोडक्ट्स है उसके साथ में उसका जो वेरिएंट है, हमारे को उस सिंगल प्रोडक्ट पे तो हमारे को वही ना लोगो चाहिए जो हमारी कंपनी का पेटेंट है. बट अगर हमारे को जो उसके जो डिफरेंट जो दूसरे प्रोडक्ट है उसके जो साथ के प्रोडक्ट है हमारे को उसके ऊपर दूसरे लोगो हमारे डालते हैं, तो क्या एक कंपनी बहुत सारे लोगो यूज कर सकती है? बिल्कुल क्यों नहीं कर सकती. बट मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, जैसे मान लीजिए एप्पल है तो काफी ग्लोबली एक रेप्यूटेड कंपनी है, तो कोई भी जैसे भी हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो अगर उस पर एप्पल का कोई लोगो है तो हम क्या सोचते हैं कि बढ़िया कंपनी से आ रहा है, अच्छी क्वालिटी का एक प्रोडक्ट है. वही अगर हम कोई नया दूसरी कंपनी का एक लोगो देखते हैं तो अपने माइंड में यही क्वेश्चन आता है, पता नहीं ये नई कंपनी है, पता नहीं किस तरह का एक लोगो होगा. तो वो डिपेंड करता है कि कंपनी उस लोगो को किस तरह से यूज करती है. उसकी अपनी एक ब्रांड रेपुटेशन है, वो चाहे तो अपनी नई कंपनी भी बना सकती है, उसका अपना एक राइट है. आप मोर देन वन कितनी भी कंपनी बना सकते हो, कितने भी लोगो बना सकते हो. तो सर मतलब जैसे स्टार्टअप कंपनी अपन लेके चलते हैं कि स्टार्टअप कंपनी है एंड उसी स्टार्टअप कंपनी के अंदर वो स्टार्टिंग से ही अपने दो या दो से ज्यादा लोगो ट्राई कर रही है कि हाँ हमारे को इन फ्यूचर के अंदर हमारे को इसके साथ में इसके जो अदर जैसे एक अपन बात कर सकते हैं मोबाइल के ऊपर है, मोबाइल के ऊपर हर कंपनी का सेपरेट है ना वो रहता है लोगो. हो गया एप्पल, हो गया आईफोन, वो अपना वन प्लस हो गया, नोकिया हो गया, सैमसंग है, सबका एक सेपरेट वो है. बट आज जगह रिसेंटली अभी जो मार्केट की एक रिसर्चिंग चल रही है, मार्केट में थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूटेशन हो रहा है
कि जैसे एक्सेसरीज के अंदर आ गया, कोई अब कंपनियां हैं कि जो अपने कोई टाइप सी चार्जर्स यूज कर रही हैं, कोई टाइप में ना बी में यूज कर रही हैं। लेट्स को आजकल जो कंपनियां हैं वो विदाउट चार्जिंग वाला वो एक इंटरफेस चार्जेस यूज कर रही हैं। तो उस केस के अंदर ऐसा नहीं हो सकता कि हम कोई प्रोडक्ट है ना क्रिएट कर रहे हैं तो उसके जो साथ में उसके को प्रोडक्ट्स हैं, मतलब उसका चार्जर है या उसका ईयरफोन्स है, ईयरबड्स है या उसकी स्मार्ट वॉच है, हम उस पे एक अलग लोगो लेके चले और साथ में ही उस लोगो को एक साथ करना, आगे डिजाइन को, उनकी लोगो डिजाइन को हम लोग करना रजिस्टर करके चल सकते हैं। ऐसा हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए एक मोबाइल है, तो उसके अंदर मोबाइल के अंदर कई सारे एसेसरीज रहती है इनबिल्ट, जैसे उसके अंदर किस तरह का प्रोसेसर यूज किया गया है। तो जैसे मान लीजिए एप्पल का मोबाइल है, तो जरूरी नहीं कि एप्पल का खुद का प्रोसेसर हो, वो तीसरी अलग कंपनी से हायर करता है उसको। तो ऐसा हो सकता है, ऐसा कोई वो नहीं है। ओके ओके सर, थैंक यू। ओके, Thank you, sir, for resolving your Vipin Sharma sir query. और कोई पूछना चाहता है, कोई क्वेश्चन? Sir, I think there is no more participants to ask any query. Sir, एक क्वेश्चन मेरा है, क्या हम रिसर्च पेपर्स को भी सर पेटेंट करा सकते हैं क्या? रिसर्च पेपर को बिफोर रिसर्च पब्लिकेशन। पेपर किस फील्ड का है ये बताइए पहले तो। सर हम जैसे लाइफ साइंस से रिलेटेड है, लाइफ साइंस में अगर हम कोई रिसर्च करते हैं तो बिफोर पब्लिकेशन क्या उसको पेटेंट के लिए हम फाइल कर सकते हैं? देखिए, पेटेंट के अंदर जो भी आपका टेक्निकल कोई भी आइडिया है तो आप उसको करवा सकते हो। जैसे मान लीजिए आपने कोई रिसर्च पेपर लिखा, आज आपने रिसर्च पेपर लिखा और मान लीजिए कल को पब्लिश हो गया वो, तो उस पब्लिश होने के विद इन द 1 ईयर के अंदर आप उसको पेटेंट भी फाइल कर सकते हो। बट कंडीशन क्या है कि वो जो ऑथर है या जो एप्लीकेंट है वो सेम रहना चाहिए। अच्छा, अगर आपका अपना रिसर्च पेपर है तो आप अपने नाम से उसको फाइल कर सकते हो विद इन द 1 ईयर, ये रहता है। पब्लिकेशन के बाद भी हो सकता है सर पेटेंट? जी जी बिल्कुल, अच्छा। पब्लिकेशन होगा तभी तो पब्लिक डोमेन में आएगा। नहीं, जैसे हमने within पेपर the 1 लिखा, year, हम पहले उसको पेटेंट में लेके आए या पहले उसको पब्लिश करा के फिर पेटेंट के लिए लेके आए? पहले आप उसको पेटेंट करवाइए। पहले पेटेंट होगा वो? हाँ, बट कोई इश्यू नहीं है। अगर आपने मान लीजिए पहले रिसर्च पेपर को जर्नल में पब्लिश करवा भी दिया है तो आप उसको अच्छा। पेटेंट में भी फाइल कर सकते हो विद इन द 1 ईयर के अंदर। विद इन द 1 ईयर, ठीक है सर, थैंक यू। जी। ये तो हम लोगों को बिल्कुल पता नहीं होता है सर। हेलो सर, एक हैंड और रेज हुआ है, मेघा भूरिया, मेघा भूरिया जी, हाँ ये पूछ सकते हैं? हेलो मैम। हेलो सर। हाँ, आप पूछिए अपना क्वेश्चन। जी सर, जैसे ये पेटेंट एक्ट जैसे ये 20 ईयर के लिए वैलिड है, डिजाइन 10 ईयर, तो क्या इसके बाद हम दोबारा कराना पड़ता है क्या अगेन? नहीं, पेटेंट 20 ईयर्स के लिए रहता है। फिर वो जो भी आपने नया प्रोडक्ट बनाया था, जो प्रोसेस बनाया था आपने 20 साल पहले, वो फिर पब्लिक डोमेन में आ जाता है, फिर उसको पब्लिक यूज कर लेती है। जी सर। फिर आपका वो न्यू नहीं रहता, वो मतलब 20 ईयर्स के लिए मतलब दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। तो उसको कोई भी बना सकता है, आप क्लेम नहीं कर सकते आफ्टर 20 ईयर्स। सर ये हाँ मेघा जी पूछिए। जी 20 ईयर्स के लिए तो अपन प्रोटेक्शन मिलती है, बाद में ये पब्लिक में आ जाएगा। हाँ, बाद में नहीं मिलेगा। सर ये हमें कैसे पता चलेगा अगर हम सपोज किसी प्रोडक्ट के लिए पेटेंट फाइल करना चाहते हैं कि ऑलरेडी इसका पेटेंट हो चुका है या नहीं हो चुका है? ये हम किस वो तो तरह हम करते हैं, हम चेक करते हैं, एक एग्जामिनेशन करते हैं हम उसका। अच्छा, हमारे पास डाटाबेस रहता है उसका। अच्छा। सर हम जैसे कोई सॉफ्टवेयर, किसी एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, हम अपना तरीके से उसको बनाते हैं, तो उसका भी पेटेंट होता है सर? सॉफ्टवेयर जनरली मैम कॉपीराइट के अंदर आते हैं। अच्छा, कॉपीराइट में चलता है। जी। हेलो सर बताइए। हाँ जी सर, पूछिए अपना क्वेरी। हाँ सर, ये आपने भौगोलिक सीमाओं के आधार पर जो पेटेंट की बात कही थी कि पेटेंट टेरिटरी के आधार पर भी होता है, तो आज जैसे आउटसोर्सिंग में बाहर की कंपनियां अपने देश में आकर प्रोडक्ट का करती, तो उसमें फिर पेटेंट का क्या रहता है सर, नॉर्म्स वगैरह? नहीं, आप ज्योग्राफिकल आप क्या कहना चाह रहे हो स्टार्टिंग में? आपने ज्योग्राफिकल पेटेंट बताया था सर कि जो जिस एरिया में होता है उसका एक ज्योग्राफिकल पेटेंट होता है। अभी आपने इसमें चार्ट भी दिया। ज्योग्राफिकल पेटेंट नहीं था, वो एक अलग तरह का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी था। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, जैसे पेटेंट है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, वैसे ही ज्योग्राफिकल इंडिकेशन भी एक अलग तरह का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है।
तो ज्योग्राफी के बेस पे इंडिया के अंदर कोई प्रोडक्ट फेमस है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको जीआई टैग देती है। उसमें फॉरेन कंपनी का कोई हाथ ही नहीं, नहीं तो है। मैं यही वो कहना तो चाह यहाँ रहा पे जो लोकल लोग रहते हैं उनके नाम से नहीं इशू नहीं होता है। सर, बाहर की कंपनी जैसे अमेरिका की कंपनी आकर इंडिया का आउटसोर्सिंग होता है, यहाँ से वो अपना लोगो लगाती है और सब कुछ यहीं से होता है प्रोडक्ट का जो क्रिएशन। अच्छा तो अच्छा, वो कैसे रहा ज्योग्राफी, ये भेजना चाह रहा हूँ। वो तो कर सकते हैं ना। मान लीजिए आपने इंडिया में पेटेंट फाइल किया है तो आपका जो प्रोडक्ट है कोई बढ़िया, तो आप उसको अमेरिका में भी फाइल कर सकते हो, वहां पर भी आप अपना सेल कर सकते हो, कोई भी कर अच्छा, सकते हैं। जो यहाँ की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग, जैसे पिज्जा बर्गर अमेरिकन कंपनी बनाती है, डोमिनोज वगैरह, ये तो यहाँ की जो रिक्वायरमेंट है उसको अकॉर्डिंग वो भी एक पेटेंट ही होता है हाँ ना हाँ, बिल्कुल 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 ओके। बिल्कुल, वो अपने नाम से कर सकती है। जी जी, थैंक यू सर। ताकि किसी की भी अगर सर मनोज सर, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप अपना कांटेक्ट नंबर या अपना ईमेल आईडी चैट बॉक्स में प्लीज डाल दीजिए, जिससे अगर किसी की फर्दर कोई क्वेरी होती तो वो आपसे डायरेक्ट श्योर श्योर मैम, श्योर। रिजॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन सर, दिस इज रियली वेरी नाइस सेशन एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अनदर सेशन सर। थैंक यू। ओके मैम, थैंक यू। सर्टिफिकेट्स मैं पार्टिसिपेंट्स को बताना चाहूंगी कि विद इन 1 और 2 डेज सर्टिफिकेट्स आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से आपकी जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है वहाँ उसके थ्रू आपको मिल जाएगा। जैसे ही आप लिस्ट हमको दोगे उसके बेस पे बना दी जाएंगे। यस सर। ओके सर, ओके मैम, थैंक यू Thank सो you. मच सर, थैंक यू।